ओके, व्हाट इज अ डिसऑर्डर? डिसऑर्डर क्या होता है? some kind of problem, some kind of dysfunctionality, some kind of inappropriateness, ठीक है? और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होगा? दिमाग से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, साइकोलॉजिकली रिलेटेड डिसफंक्शन. नाउ डिसऑर्डर्स कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स. आई हैव जॉटेड डाउन 6 to 7 ओनली. आपको यही पता होने चाहिए. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आपसे शेयर किए जा सकते हैं. अगर आप चाहें आप पढ़ सकते हैं. Before I move forward, do you know any psychological disorder by its name? Yes, you do. ADHD, depression, anxiety, depression, OCD. OCD is obsessive compulsive disorder. और PTSD आपने मूवीज़ में सुना होगा. PTSD, post traumatic distress disorder. इसके अलावा सोशल एंग्जाइटी सुना होगा आपने, सीजनल एंग्जाइटी सुना होगा. देन यू हैव सो मेनी अदर टाइप्स एज वेल. बाइपोलर सुना होगा. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द बाइपोलर. स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में शायद आपने कभी किसी मूवी में सुना हो. तो ये सारे जो हैं ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं. नाउ व्हाट आर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स? टू बी प्रिसाइज, देयर आर मेनी वेज टू डायग्नोज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. हम क्या करते हैं ऑन डेली बेसिस, व्हेनेवर वी मीट पीपल and they behave oddly or not according to our expectations, so what do? We label them with something, that something is psychologically wrong with this person. He is challenged or she is challenged. कोई ना कोई इसको दिमागी मसला है, हम ये चीज़ें कहते हैं. but that cannot be true. A psychological disorder can only be diagnosed by a professional, either a psychologist or a psychiatrist. I hope you remember what's the difference between a psychologist and a psychiatrist. What's the difference? Psychologist और psychiatrist में क्या difference है? Very good. Psychologist is somebody who can only talk to you, who can have a therapy sessions with you, but he or she cannot prescribe any medicine to you because they have not studied in that manner. However, a psychiatrist is a full-fledged doctor जिसकी specialization साइकोलॉजी में होती है. वो आपकी सर्जरी भी कर सकते हैं, वो आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और भी जिस किस्म की उनके पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, इलाज अवेलेबल होते हैं, वो आप पे अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन साइकोलॉजिस्ट सिर्फ आपको थेरेपी प्रोवाइड कर सकता है. साइकोलॉजिस्ट ज़रूरी नहीं है उसने MBBS किया हो, ठीक है, वो दूसरी तरह से भी बन सकते हैं. नाउ डायग्नोसिंग डिसऑर्डर्स. The medical diagnosis of a mental health condition is a complex process of matching an individual's pattern of physical and psychological symptoms to behaviors associated with the disorder. Now this makes it very clear for you that in order to diagnose a mental condition, a therapist have to have involvement in it, and so is a doctor or an MBBS doctor or a psychiatrist. दोनों मिल के डायग्नोज करेंगे, फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी. आप सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पे कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल कंडीशन है. आपको दोनों ओपिनियन लेने होंगे, फिजियोलॉजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी. सम कंडीशंस सच एज अ लर्निंग डिसेबिलिटी or neuropsychological problems are easily identified. Functional disorders that affect personality and conduct are more difficult, however, as they involve numerous biological, psychological and social factors. Right? Dyslexia सुना है आपने कभी? What is it? Some people, they have difficulty while reading, writing and with spellings as well. They cannot. Yes, there is a Hindi movie on it. That's called Tare Zameen Pe. The child is unable to actually recognize words properly. He is not dumb. He is intelligent. लेकिन उसके पास एक problem है, एक psychological problem है जिसे dyslexia कहते हैं. So ऐसी learning problems भी disorder में आती हैं, लेकिन उसके लिए remedies available हैं. ठीक है. Functional disorders that affect personality and conduct are more difficult to diagnose because समझ नहीं आता कि उनको कैसे help करना है और diagnose कैसे करना है.
जैसे खुदा न खास्ता इफ़ समबडी इज़ इन एन एक्सीडेंट और उनके सर पर कोई चोट लगती है और उसके बाद उनका बिहेवियर चेंज होता है, तो इट इज़ एविडेंट कि कुछ न कुछ ट्रॉमा उन्होंने बेयर किया है, कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस उनमें आए हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर गोइंग थ्रू दिस साइकोलॉजिकल चैलेंज एज वेल. Now, what are mental health disorders? As I've told you, mental disorders को diagnose करने के लिए physiological and psychological दोनों perspectives होना लाजमी है. Mental health disorders are characterized by the presence of unusual or abnormal mood, thinking and behaviors that can cause an individual significant distress and impairment. आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को crowd से घबराहट होती है. Do you know somebody who is very scared of the crowds? और वो वेट करेंगे और लोगों में जाना पसंद नहीं करते, कम हो जाते हैं तो जाते हैं. Now that's a mental health condition. There are many triggering points. बहुत सारे problems हो सकते हैं, past experiences हो सकते हैं जो उनको इस तरह से behave करने पे encourage करते हैं. It actually disrupts their functionality. उनकी daily basis पे जो functionality है उसे वो disrupt करते हैं. Impairment occurring as a result of common stressors such as bereavement would not be considered a disorder. Diverse social and cultural factors impacting behaviors might also rule out the presence of mental health problems. Sometimes short time period के लिए आपके पास कोई ना कोई mental stressors होते हैं, external stressors होते हैं जिसकी वजह से behavioral changes आते हैं, लेकिन you bounce back. Eventually you come back to your original self, your sane self. जैसे आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं एग्जामिनेशन फीवर. डू यू नो इसमें क्या होता है? मोस्टली जो जिनको ये फेस करना पड़ता है वो बीमार हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकली बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, खाना नहीं खाया जाता या बहुत ज़्यादा खा लेते हैं. दैट इज़ एग्जामिनेशन फीवर. वो एक थोड़े से टाइम के लिए आता है, जब तक पेपर हो नहीं जाते तब तक रहता है, उसके बाद वो बच्चा नॉर्मल हो जाता है. तो वो एक डिसऑर्डर नहीं है, वो एक कंडीशनल सिचुएशनल स्ट्रेसर है जो आपको स्ट्रेस आउट करता है और आप इस तरह से बिहेव करते हैं. डिसऑर्डर एक ऐसा पैटर्न होगा, एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसी फीलिंग और एग्जीक्यूशन होगी जो टाइम एंड अगेन रिपीटेडली की जाएगी, ठीक है, ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड. जैसे डिप्रेशन तभी डायग्नोस होता है जब आप कंटिन्यूसली 2 से 2.5 वीक्स के लिए डाउन फील करते हैं. एक दिन के लिए डाउन फील करना इज़ नॉट डिप्रेशन, दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है. तो इस तरह से डायग्नोसिस होता है. Now there are different categories of disorders: mood disorders, anxiety disorders, OCD disorders, trauma and stress related, communication disorders. अच्छा, communication disorders बड़े common होते हैं स्टूडेंट्स में. आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, they can explain all the concepts so well, but when it comes to speaking in the classroom, they never speak. वरना ऐसे बच्चे होते हैं ना जो आपको बहुत अच्छा समझा देते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन जब क्लास में बोलने की बारी आती है तो वो नहीं बोल पाते. दैट कम्स इन कम्युनिकेशन डिसऑर्डर. देन वी हैव मोटर डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स, जिसमें आप अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी से डिसएसोशिएट हो जाते हैं, यानी यू स्टॉप मेकिंग कनेक्शन विद द रियलिटी. देन यू हैव साइकोटिक डिसऑर्डर्स एंड देन यू हैव न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. अब इसमें से कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं वो मोस्टली उनकी जो बेसिस है वो फिजियोलॉजिकल है, यानी कोई फिजिकल इंजरी होती है तो ये वाले डिसऑर्डर्स अकर होते हैं. इसमें से कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि बिहेवियरल चेंजेस होते हैं और इवेंचुअली इंसान में कुछ ऐसा ट्रिगर होता है जो उसको डिसऑर्डर में तब्दील कर देता है. उन केसेस में फिजियोलॉजिकल इंजरी होना एज इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाती. तो ये कैटेगराइजेशन की जो नाम है ये आपको याद रहने चाहिए. 1 in 4 people will be affected by mental or neurological disorder in their lifetime. I repeat, 1 in 4. If we have 4 people, among those, 1 will definitely be affected by some kind of mental health condition. It could be as simple as anxiety or depression. Anxiety is very much real. As I've told you, anxiety को भी diagnose करने का एक process है. Just because आप एक दिन के लिए 2 दिन के लिए anxious feel कर रहे हैं, that doesn't mean that you have the disorder. That only means that you're human and you're trying to cope up with it. ठीक है.
इसके बाद देखें असेसमेंट ऑफ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन. देयर आर 4 स्टेप्स. फर्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन, second is clinical interview, then we have psychological test, and then we have behavioral assessments. In order to assess a mental health condition, these 4 steps are to be met for sure. Clinical diagnosis is made only after a careful assessment process that includes observation and interpretation of a person's behavior and discussion with them. If relevant, their family, caregivers and specialist professionals can be called for questioning as well. Sometimes when a doctor is unable to diagnose somebody with any health condition or mental health condition, they need to conduct interviews, they need to ask people who live with them कि क्या उन्होंने कोई पैटर्न आइडेंटिफाई किया, कोई ऐसी बात लगी उन्हें कि जिससे उनको लगा हो कि ये बंदा ऑड बिहेव कर रहा है. तो ये जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है इसको वो क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Putting a name to a person's distress can help them and provide support to their family. देखिए कुछ लोग होते हैं उन्हें समझ नहीं आती कि वो इतना obsessively या sensitively overreact क्यों कर रहे हैं. Sometimes you do not have control over your own impulses. उसके पीछे बहुत सारे triggering points हो सकते हैं और आज के दौर में ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जो उसे कंट्रोल करने में हेल्प करती है. अगर कंट्रोल ना भी करे तो नम कर देती है. एंड इफ़ इट इज़, अगर आपकी सोचने समझने की सलाहियत ही नम हो चुकी है तो वो जो रिएक्शन होता है, वो जो इंटेंस रिएक्शन होता है, वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है. ठीक है. फर्स्ट स्टेप है फिजिकल एग्जामिनेशन. अ जनरल फिजिशियन, GP इज़ अ जनरल फिजिशियन, विल फर्स्ट एलिमिनेट फिजिकल इलनेस दैट कुड बी कॉजिंग सिम्टम्स. समटाइम्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, अपेरेंटली जो साइकोलॉजिकल लग रहा होता है वो साइकोलॉजिकल होता नहीं है, उसमें फिजियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं. जैसे जो ये वायरसेस होते हैं, ठीक है, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं समटाइम्स वो ऐसा शोकेस करते हैं, ऐसे एग्जिबिशन करते हैं कि लग रहा होता है कि दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. बट इवेंचुअली जब उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है, डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, डायग्नोस होता है कि ब्लड में कोई मसला है, कोई और लैटिट्यूड में कोई मसला है या बॉडीली कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो उन्हें पता चलता है कि किसी न किसी किस्म का फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है. जैसे ये जो कोरोना वायरस आया था या इबोला वायरस है, ये दुनिया में बहुत सारे वायरसेस हैं, आपने डेफिनेटली किसी न किसी का नाम सुना होगा. जब तक इसको फिजियोलॉजिकल टेस्ट नहीं किया गया था, जब तक ये लैब में ही नहीं पहुंचा, जब तक ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ ने पिक नहीं किया, तब तक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या कंट्रीज़ जो पुअर हैं उन्होंने सोचा ये कोई साइकोलॉजिकल या जिन भूत है. दे वुड सिंपली कॉल इट सम कि कोई सुपर नेचुरल पावर है और इंसान को जिन आ गया है एक्सेट्रा. इवेंचुअली इवॉल्व हुआ, उन्होंने लैब में टेस्टिंग किया तो पता चला कि इट हैज़ अ फिजियोलॉजिकल बेसिस. समझ रहे हैं आप इस बात को कि जो जिस चीज़ को हम लेबल नहीं कर सकते, हम सीधा सीधा कहते हैं जिन भूत का मामला है, इसको कोई साया है, इसको कोई असेब है, ऐसा होता है ना. तो फिजिकल एग्जामिनेशन हेल्प्स इराडिकेट दोज प्रॉब्लम्स, राइट. Imaging techniques may be used to test for brain injury or dementia, and blood tests can reveal a genetic predisposition to certain disorders. अब ब्लड टेस्ट के ज़रिए ही वो पहले से ही बता देते हैं कि किस किस्म के डिसऑर्डर्स पॉसिबली एक बच्चे में आ सकते हैं. अब तो वेस्टर्न कंट्री ने इतनी तरक्की कर ली है कि अभी तक बच्चा जो है वो पैदा भी नहीं हुआ, वो उससे पहले ही उसका जेनेटिक टेस्ट करके देख लेते हैं कि whether this child would be genetically okay or not. ठीक है. जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऑप्शन दी जाती है कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर निकलने वाला है इस बच्चे में, सो दे कैन अबॉर्ट. ऑल्दो इन पाकिस्तान, इन आर इस्लाम, इट्स नॉट अलाउड, हमारे रिलीजियसली और कल्चरली सोसाइटी लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है. लेकिन वेस्टर्न कंट्री में जेनेटिक्स को इस तरह से स्टडी करके इतने एडवांस लेवल तक वो जा चुके हैं. देन वी हैव क्लिनिकल इंटरव्यूज़. If no physical illness is identified, this is only conducted जब तक कोई physical illness identify नहीं होती. An individual may be referred to a mental health specialist. They will ask the client about their life experiences, their family history, and recent experiences that relate to their problem. The conversation will also aim to uncover any predisposing factors, strengths, and vulnerabilities. इस clinical interview का मकसद वही है टू नो कि किस किस्म के एक्सपीरियंसेस एक इंडिविजुअल गुजरा है, इसने क्या क्या फेस किया है, इस वक्त क्या स्ट्रेसर है,
क्या चीज़ अनमोटिवेट कर रही है या डीमोटिवेट कर रही है, तो ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं। कैंडिडेट से भी किए जाते हैं, उनके लव्ड वन से भी किए जाते हैं। थर्ड स्टेप इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। जैसे उस दिन हमने 2-3 टेस्ट की बात भी की थी, ऑल्दो दे वर रिलेटेड टू बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन वो आपको एक तरह से हेल्प करते हैं। सिमिलरली क्लिनिक में एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट एक डिफरेंट किस्म के एक सेट ऑफ जो उनके पास साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनको भी कंडक्ट करते हैं। Particular aspects of a person's knowledge, skill or personality will be evaluated through a series of tests and tasks, usually in a form of checklist or questionnaires. If you remember, I might have shared that when I was hired by a private school, they conducted a psychological test on me. They gave me a survey. There were 100 MCQs and statements, and time and again some statements were repeated. So वो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था कंसिस्टेंसी के लिए। इसी तरह से अगर कोई फंक्शनल डिसऑर्डर हो किसी में, किसी के बिहेवियर में डिसऑर्डर हो, उससे भी इस तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सच टेस्ट में मेजर अडेप्टिव बिहेवियर्स, बिलीव्स अबाउट द सेल्फ एंड ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो MBTI टेस्टिंग थी जिसमें हमें पता चलता है कि जो एक पोटेंशियल एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई है वो इंट्रोवर्ट है कि वो एक्सट्रोवर्ट है, वो ट्रेट पर्सनालिटी टेस्ट में आ जाता है, ठीक है। फोर्थ स्टेप है बिहेवियरल असेसमेंट। A person's behavior will also be observed and measured normally in the situation where their difficulties occur to gain an understanding of the factors that participate in their symptoms. Again, they will try to take a look at the behavioral assessment, behavioral problems के अगर कोई हैं तो उन्हें कैसे eradicate किया जा सकता है। The person might also be asked to make their own observations by recording a mood diary or using a frequency counter. Like I told you, sometimes people want to get help, but they don't know how to help themselves. तो उन्हें suggest किया जाता है कि जब भी आपको कोई outburst हो, आपसे control ना हो रहा हो, आपको emotional एक state आए जिसमें आप डेफिनेटली रैशनल बिहेव नहीं कर पा रहे, तो उसको नोट करते जाएं। तो वो उस मूड डायरी को बना कर लाते, वो एक पैटर्न शो कर सकता है। तो फिर वो जो साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट होता है, दे कैन कम टू अ कंक्लूजन इफ़ देयर इज़ अ पैटर्न फाउंड। सम ऑफ द फंक्शनल डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें पैटर्न मिल जाता है और डायग्नोसिस हो जाता है। समटाइम्स कोई पैटर्न नहीं होता, तो फिर मल्टीपल तरीक़ों से उन चीज़ों को ट्रीट करना पड़ता है। Okay, I hope you have understood that assessment of a mental health condition is based on 4 steps: physical examination, clinical interview, psychological testing and behavioral assessment. Until unless these 4 steps have been taken या इन्हें कंडक्ट कर लिया गया, तब तक कोई डायग्नोस नहीं कर सकता कि किसी को कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है। ये चारों होंगे और ये अच्छा खासा टाइम पीरियड लेंगे, एक दिन में नहीं हो सकते ये, यू अंडरस्टैंड। एक बिहेवियर को असेस करने के लिए एटलीस्ट जो एग्जाम्पलरी सैम्पल टाइम होगा, इट हैज़ टू बी अराउंड 6 months। 1 महीना भी काफ़ी नहीं है उस पैटर्न को जज करने के लिए, उसे असेस करने के लिए, इट्स नॉट इनफ। और वो सिवेरिटी पे डिपेंड करेगा। अगर एक शख्स की डिसफंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा स्वेयर है कि वो अगले बंदे को मारना ही शुरू कर देता है, अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देता है। आजकल की जनरेशन में एक बात बड़ी कॉमन है, वो अपने हाथ पे यहाँ पर कट्स मारते हैं। They have this tendency of self-destruction. I'm not talking about you, you don't have to talk about yourself. I'm talking about the general perception and it is common. ठीक है, तो वो यहाँ पर कट्स मारते हैं, तो वो एक दफ़ा में तो नहीं मारते, ओवर द ईयर्स होता है। और वो कब कब करते हैं उसका पैटर्न स्टडी करने के लिए एटलीस्ट 6 months तो चाहिए होंगे। तो ये सारी असेसमेंट सालों भी लग सकते हैं और समटाइम्स मंथ्स में भी ये डायग्नोस हो जाता है। तो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए ये चारों स्टेप्स को डिलिबरेटली समझना, कंडक्ट करना एक साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट वी मस्ट नो इज़ डिप्रेशन। जैसे आपने शुरू में कहा भी था, किसी ने आइडेंटिफाई भी किया था, दिस इज़ वेरी कॉमन। आजकल बहुत कॉमनली इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। जैसे हम कहते हैं यार कंसेक्टिव 4 पेपर है, मैं बड़े डिप्रेशन में। यस, नाउ दैट इज़ नॉट डिप्रेशन, दैट इज़ सिचुएशनल एंग्जाइटी के हो जाएगा तो फिर हम परेशानी से बाहर भी आ जाते हैं। शुक्र है हो गया, राइट। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट,
50% of your exam, your end term exam is going to be based on this particular topic, so pay attention. Depression देखें, this is a common condition that may be diagnosed when a person has been feeling down and worried and has lost pleasure in daily activities for more than 2 weeks. डिप्रेशन तभी क्लिनिकली डायग्नोस हो सकता है जब कंसेक्टिवली आप 2 हफ्तों से ज़्यादा परेशान फील करें और डाउन फील करें, यानी आप डेली जो आपका फंक्शन है वो करने से आप परेशान हो जाएं, आप ना करें. जैसे आपने डेली यूनिवर्सिटी आना है, आपने डेली जिम जाना है, या आप जॉब करते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास 3 एक्टिविटीज़ होती हैं डेली की और आप तीनों नहीं कर पा रहे, ठीक है, तीनों नहीं कर पा रहे या 2 नहीं कर पा रहे या एक को हमेशा स्किप करा रहे हैं, छुट्टियां ज़्यादा कर रहे हैं और ये कंटिन्यूसली चल रहा है, आप अपने जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, तो 2 वीक्स के बाद ये क्लिनिकली डिप्रेशन हो जाता है. ठीक है, what is it? The symptom of depression can include continuous low mood or sadness, having low self-esteem, feeling hopeless and helpless, being tearful, feeling guilty-ridden and being irritable and intolerant of others. अच्छा, low self-esteem is very common among us because हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं और आपने देखा होगा कि बड़ा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है स्टूडेंट्स का क्लास में. कंटिन्यूसली बात करेंगे, कंटिन्यूसली मोबाइल में देखेंगे, डेलिबरेटली टीए को तंग करेंगे, डेलिबरेटली लेट आएंगे. दिस शोज दैट दे आर फेसिंग समथिंग साइकोलॉजिकल लेवल पे, देयर इज समथिंग देयर, दे डू इट ऑन पर्पस. सम ऑफ देम रीज़न कुछ भी हो सकता है, अनइंटरेस्टेडनेस हो सकती है, टीचर को अनॉय करना रीज़न हो सकता है, हाईलाइट होना हो सकता है, अटेंशन सीकिंग हो सकती है, या सिंपली एज दैट दे आर डिप्रेस्ड एंड दे कांट कोप अप. वो अपनी डेली लाइफ का फंक्शन जो उनका रोल है उसको प्ले नहीं कर पा रहे और फिर वो हर डाइवर्स रिएक्शन एंड एक्शन प्रोड्यूस करते हैं. सिंपली ये डायग्नोसिस भी हो सकता है. अ पर्सन विद डिप्रेशन इज अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरेस्टेड. जैसे कंटिन्यूसली पीछे वाले जो बच्चे हैं, आई कैन स्टिल सी मोबाइल में लगे हैं, तो अनइंटरेस्टेडनेस, अपने ही कोर्स में, अपने ही 100 नंबरों में इंटरेस्ट ना होना कुड बी वन ऑफ द साइंस के कुछ ना कुछ ट्रिगर कर रहा है उनको ये ना करने पे. दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक डिसीजंस एंड टेक्स नो एंजॉयमेंट फ्रॉम लाइफ. एज अ रिजल्ट द इंडिविजुअल मे अवॉइड सोशल इवेंट्स that they usually enjoy, thus missing out on social interaction, which can cause a vicious circle which sees them spiraling further downward. ये एक ऐसा प्रोसेस है कि ये एक सर्टन लेवल से आगे चला जाए तो ये ख़त्म नहीं होता, ये एक्सीड कर जाता है, ये आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है और फिर इंटेंस हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. सो इफ़ यू फील लाइक दिस कंटिन्यूसली यू नीड टू सीक हेल्प, राइट? Depression can make it difficult for a person to concentrate and remember things. In extreme cases, the sense of hopelessness may lead to thought of self-harm and even suicide. There is a show called 13 Reasons Why. ठीक है, it is an educational show जिसमें वो यही दिखाना चाहते हैं कि हाई स्कूलर्स जो हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुजरते हैं, लोग एक दूसरे को बुली करते हैं, तंग करते हैं, whatsoever. तो सेल्फ स्टीम जो है वो लो हो जाती है, वो इवेंचुअली सेल्फ हार्म की तरफ और सुसाइड की तरफ भी ले जाती है. आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ये रेशियो आज से 25 साल पहले इतना ज़्यादा नहीं था सुसाइड का, लेकिन नाउ इफ़ यू लुक एट द स्टेटिस्टिक्स, यहाँ पे भी वो जो एक राइजिंग, जो वो एक स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो वहाँ तक पहुँच गया कि जो बच्चे हैं, अडल्ट हैं, बूढ़े हैं, जो भी जिस भी एज में, हर एज ग्रुप अफेक्ट हो रहा है और साइकोलॉजिकली वो इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि सुसाइड जो है उसका रेशो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है. आए दिन न्यूज़ में हम देखते हैं कि 9th-10th के बच्चे पे इतना प्रेशर था कि उसने 98% लेने हैं कि उसके 97% आए और वो परेशानी से ही हंग हिमसेल्फ. ठीक है, बच्चियां जो हैं, बच्चियों के मार्क्स आते हैं, मैंने खैर ये जनरल असम्पशन है मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है इसे प्रूव करने के लिए, लेकिन वो नंबर ले लेती है, 95-96% आ जाती है, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में पेरेंट्स, सोसाइटी, स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम डाल देती है कि 99% होंगे तो ही वो अच्छे नंबर है, विच इज़ वेरी वियर्ड. आप 99% को जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप 4/4 CGPA को जस्टिफाई नहीं कर सकते. यू डोंट हैव दैट नॉलेज. आप समझ रहे हो, आपका ये स्कोर कहता है कि आपको सब आता है, आप एक एक चीज़ बता सकते हो और समझ के बता सकते हो, विच इज़ अनरिक्वायर्ड. ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, राइट?
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी डिप्रेशन कॉज करती हैं, सेल्फ हार्म, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जब बच्चे से वो अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेशन है, अनअचीवेबल एक्सपेक्टेशन उस पर जो सेट की जाती है, उस पर थोप दी जाती है, जब वो अचीव ही नहीं कर सकता तो इवेंचुअली लो सेल्फ इस्टीम होगी। जब लो सेल्फ इस्टीम होगी तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, जब वो इंटरेस्टेड नहीं होगा वो मोटिवेटेड नहीं होगा, और मोटिवेटेड नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता। एक पॉइंट पे आके वो इतना इरिटेट हो जाएगा कि वो घर में सबके साथ बैठ के खाना खाने से भी मना करेगा, एक्ट आउट करेगा कि मैंने आपसे बात नहीं करनी, मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं। Like I told you, there are certain internal and external causes. A wide range of biological and social and environmental factors can cause depression. ठीक है, बायोलॉजिकल क्या होंगे कि अगर आपके सर में या आपके फिजियोलॉजिकली कोई ऐसी चोट लगी हुई है जिसकी वजह से आप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते, जैसे कुछ बच्चे होते हैं अगर उनके नोज़ की जो प्लेसमेंट है वो करेक्ट ना हो, आँख की प्लेसमेंट करेक्ट ना हो, हाथ में कोई डिसफंक्शन हो, ज़रा सा लिम्प भी करते हो, तो वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। बच्चों के मजाक उड़ाने की वजह से, लोगों की उनकी तरफ अजीब तरीके से देखने से, उनसे अजीब तरीके से बात करने से डिप्रेशन कैन टेक प्लेस। जैसे ये जो हाइट है, हाइट फोबिया भी होता है। फोबिया इज़ समथिंग रियली हार्श। फोबिया एक ऐसे लेवल को कहती हैं जिसमें आप फिर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। जैसे जिनका कद या तो बहुत लंबा होता है या बहुत छोटा होता है, उनका भी लोग मजाक उड़ाते हैं। आपने भी कभी ना कभी लाइफ में किसी स्टेप पे किसी का मजाक उड़ाया होगा, विच इज़ वेरी बैड, विच कैन लीड देम टुवर्ड्स सेल्फ हार्म एंड डिप्रेशन। तो इस तरह का अगर कोई बायोलॉजिकल चेंज है या कुछ डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है किसी में, वो भी डिप्रेशन की तरफ ले जा सकती है। सोशल की बात करें, जी बेटा, फॉलेज इज़ ए यस। अब देखें, खुदा न खास्ता एक फेस का फॉलेज होता है लेफ़्ट साइड का, जिसमें सिर्फ जो फेस होता है वो थोड़ा सा डिसओरिएंटेड हो जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आई एम फाइन, ठीक है, आई डोंट हैव इट, लेकिन खुदा न खास्ता इफ़ आई हैव इट विद इन नेक्स्ट मंथ, आई डेफिनेटली फील समथिंग। पीपल वुड बी, आप सभी मेरी तरफ एक अजीब नज़रिए से देखेंगे, और अगर आप नहीं भी देख रहे तो मैं सोचूंगी कि मुझे देखा जा रहा है। यू अंडरस्टैंड? तो वो इवेंचुअली वो फीलिंग्स ऑफ डिस्ट्रेस, social anxiety, people looking at me feeling not comfortable with my own face, it could lead to depression. ज़रूरी नहीं है कि सबको हो, mandatory नहीं है। The other day one of your classmates showed me something that was very thought provoking. He was in an accident, he burned himself completely and he is such a positive student. तो अब देखिए उनका रिएक्शन वैसा नहीं है। They could be, ऐसे भी तो हो सकता था कि वो लाइफ से बिल्कुल ही डिटैच हो जाते कि मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, ये क्या हो गया, लेकिन वो दे आर स्टिल पॉजिटिव। एक वीडियो इंटरनेट पे गर्दिश करती है, शायद आपने देखा हो कि एक सब्जी बेचने वाला होता है, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी टांगें दोनों उसमें बैडली इंजर्ड हो जाती हैं, एंड देन ही हैज़ टू वॉक थ्रू दोस केन्स, लेकिन वो उसमें भी बहुत खुश है और उसके साथ भागता हुआ दिखाई देता है, दैट ही इज़ ओके विद इट, वट एवर गॉड हैज़ गिवन टू हिम। तो वो उसका रिएक्शन है टू अ ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस। रही बात कि हम हर एक्सपीरियंस को कैसे लेते हैं, उस पर आप पे डिपेंड करेगा कि आप डिप्रेशन के कौन से लेवल पे जाते हैं या नहीं जाते, ऑल टुगेदर नहीं जाते। अच्छा, अभी तक जो हमने डिप्रेशन के बारे में बात की है, डू यू थिंक आप में से कोई डिप्रेस्ड है? नो? ओके ओके, बायोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया। अगला जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आपको उसी तरह से डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। जैसे जॉबलेसनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में राइट नाउ, मेरे ख्याल से ग्लोबली है, ग्लोबली इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो जॉबलेसनेस होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत आगे चला जाता है। आपकी सोसाइटी का एक पढ़ा लिखा तबका कुछ नहीं कर पा रहा, और अगर कर पा रहा है तो 30-35 हज़ार की नौकरी कर पा रहा है, राइट? एंड दैट्स नॉट मेयरली इनफ बिकॉज यू नो एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव नाउ। तो वो इन्वायरमेंटली उन पर एक ऐसा प्रेशर, एक लेवल का प्रेशर बिल्ड होता है
कि वो कोई भी फंक्शन नहीं कर पाते। आजकल एक बहुत मसला चल रहा है कि बॉयज़ को या फीमेल्स को भी उनको डबल जॉब्स करनी पड़ रही हैं और उन्हें ये कहा जाता है कि एक सर्टन एज तक यू शुडंट बी गेटिंग मैरिड बिकॉज यू कैन नॉट सपोर्ट योर चिल्ड्रन और योर वाइफ और योर फैमिली फॉर दैट मैटर। दिस इज़ एन एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इज़ क्रिएटिंग अ स्ट्रेसर एंड दैट स्ट्रेसर इज़ लीडिंग टूवर्ड्स टू unnatural, unsocietal and illicit relationships and behaviors as well। आपने देखा है गलत काम और ये जो सारा एक्सपोजर है वो एक गलत टेंजेंट की तरफ हम जा रहे हैं। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में, लोकल यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, बाहर क्या हो रहा है, जिसको हम बेहयाई कैटेगराइज करते हैं। इट इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ऑल दीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मनी प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। If you don't have enough on your table, it will lead you towards to do some questionable things, objectionable things कि आप imagine भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका पेट फुल, आपका खाना पूरा नहीं है, आपका बेली फुल नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अगर मैंने खाना नहीं खाया हुआ है एंड इफ आई हैव टू गिव लेक्चर ऑफ 3 hours, मैं नहीं दे पाऊँ, आई नीड टू ईट। ठीक है, एक पॉइंट ही है ना, मेरा भी एक ब्रेकिंग पॉइंट है, मैं परेशान हो जाऊँगी या मैं रुक जाती हूँ, आई टेक अ ब्रेक, मुझे ब्रेक्स लेनी पड़ती हैं। तो हर एक को अपनी कैपेसिटी पता है। तो ये जो वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, दे contributes towards depression. Then we have external causes predominantly encompasses life events that can have a negative impact on a person and often act in combination with internal causes, those within an individual or triggering depression. We have discussed extensively about how introverts and extroverts, they could have different kind of triggers towards their acting out. When I say acting out, I simply mean एक behavior pattern जो हमें normal नहीं लग रहा होता। ठीक है, तो act out वो किसी न किसी trigger की वजह से करते हैं। अब वो trigger और ये external factors या depression का कोई level जब आपस में मिलता है तो वो फिर और ज़्यादा intensified हो जाता है। When it is more intensified, it creates more diverse reactions and actions from that individual, and that individual could become a person who is self-destructive or going to hurt the other people as well. तो वो एक सर्कल है, एक विशियस सर्कल है जो कि चलता ही चला जाएगा अगर इसको टाइम पर डायग्नोज करके इसको इरेडिकेट या रिड्यूस करने की कोशिश ना करें। जैसे माई मदर, शी इज़ ऑन मेडिसिन फ्रॉम 2008, वो दिन की 7 मेडिसिन खाती, शी इज़ अ हार्ट पेशेंट। आपको पता है मेडिसिन खाने की वजह से उसके भी डाइवर्स रिएक्शंस होते हैं। स्टमक तो अपसेट होता ही होता है, ठीक है, बाउल सिस्टम ख़राब हो जाता है और डेफिनेटली आपके नर्वस सिस्टम को वो अटैक करती हैं दवाइयाँ इन वन वे और अनदर। सो शी हैज़ टू टेक अनदर पिल इन ऑर्डर टू काम हर नर्व्स, क्योंकि वो मेडिसिन खा के आप 7-8 साल से एक मेडिसिन लगातार खा रहे हैं, बल्कि 7-8 से ज़्यादा हो गए। तो अब शी इज़ ऑलमोस्ट एडिक्टेड टू दैट मेडिसिन। इफ़ शी डजंट टेक दैट मेडिसिन, शी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि फिजियोलॉजिकली उन मेडिसिन ने उनके बॉडीली चेंजेस ऐसे अकर किए हैं कि उनको मेंटेन या काम रखने के लिए उन्हें एक और मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मेंटल कंडीशंस होती हैं दे आर द सेम। ये जो मेंटल कंडीशन जो अराइज हुई है ये फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से हुई है। उनकी डाइट चेंज होगी, शी कैन नॉट हैव मीठा, ऑयल और एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद मीट, ऐसी चीज़ें वो नहीं खा सकती, तला हुआ खाना नहीं खा सकती। अब देखें, इस तरह की हर चीज़ जब आपकी डाइट से निकल जाएगी और आप बिल्कुल ही ऑलमोस्ट उबला हुआ खाना खाएंगे और उसके साथ इतनी सारी मेडिसिन भी लेंगे, ड्रास्टिक लाइफस्टाइल चेंजेस आएंगे, तो आप में साइकोलॉजिकल लेवल पे इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस आएंगे जो डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं और जाते हैं, मोस्ट केसेस में जाते हैं। तो वो एंटी डिप्रेसेंट ही है। द पिल दैट शी टेक्स इन ऑर्डर टू काम हर नर्व्स डाउन इज़ एन एंटी डिप्रेसेंट। तो वो इवेंचुअली फिजियोलॉजिकली, सोशोलॉजिकली एंड एनवायरमेंटली वो उनको दवाई लग गई। तो ये बड़ा कॉमन एक विशियस सर्कल है। यू सी, दिस इज़ अ विशियस सर्कल। Depression is so insidious, it is impossible to ever see the end. If you do not put an end, if you do not seek help, तो ये ऐसी डीप, जिसको आप वो फिल्मों में होता है ना, एक स्लैंग यूज़ होता है, ये ऐसी डीप शिट है जिससे आप बाहर नहीं आ सकते। इतनी बड़ी टनल होगी ये
कि आप चलते ही चले जाएंगे, you won't be able to bounce back. So if you face such problems at any point of your life, you must seek professional help. Professional help is available. This chart that you can see, it's the same. It talks about how different internal and external causes can cause different levels of depression. You can read it yourself. If you find anything difficult, you can ask me in tomorrow's class. Many internal and external factors such as childhood experiences, life events and physical illnesses or injury can cause depression. It can be mild, moderate or severe and is extremely common according to the WHO. More than 350 million people suffer from it globally. For example, मेरे पैर में continuously pain रहती है, ठीक है? If there is continuous pain in my foot, it will definitely hinder my daily basis task. ठीक है, अगर मैंने खड़े होकर क्लास लेनी है, एक पॉइंट पे मैं थक जाऊंगी और मुझे इतनी पेन होगी कि मैं आप पे फोकस नहीं करूंगी, मैं इस पे फोकस नहीं करूंगी, मेरा सारा फोकस इस पे चला जाएगा. इफ़ माई स्टमक इज़ अपसेट ऑल द टाइम, इफ़ आई डोंट गेट हेल्प फॉर इट, और स्टमक अपसेट रहता है, मैं खाना कम खाती हूँ ताकि स्टमक साफ रहे, लेकिन उससे मेरी हेल्थ डिटेरिएट कर जाएगी. इवेंचुअली आई एंड अप इन द हॉस्पिटल. सो ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होते हैं, they are one indication of depression. Do you have any self-destructive behavior? होगा, और करेगा, हम सब में होता है. You need to at least reduce it. अगर आप उसे कम नहीं कर पा रहे, उसे reduce करने की कोशिश करें, ठीक है? अब तक आपको क्या पता चला कि डिप्रेशन क्या है, causes क्या हो सकते हैं, what possible biological, sociological और environmental things internally and externally can cause it. WHO ने आपको एक फिगर भी दे दी कि 350 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ये होता है. उसके बाद आपको ये भी बताया गया कि इंटरनली एक्सटर्नली ये इंड्यूस होता है या रिड्यूस होता है. अब वो बताएंगे हाउ इज़ इट डायग्नोस्ड. A doctor can diagnose by asking the person questions about their particular symptoms. One objective is to find out how long the symptoms have been going on. One of the most important things in diagnosing depression is to look at the time period. As I've told you in the beginning, if it goes beyond 2 weeks, then you're clinically depressed. Otherwise, it's normal. जैसे आज मैं किसी चीज़ में फेल हो जाती हूँ, मैं इंटरव्यू में फेल होती हूँ, एग्ज़ाम में फेल हो जाती हूँ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है उसमें फेल हो जाती हूँ, और अगर मैं उसके लिए बुरा फील करती हूँ 2-3 दिन, तो दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल. लेकिन अगर मैं उसको दिल दिमाग पर लगा कर बाकी सारी दुनिया की चीज़ें छोड़कर एक कोने में जाकर महीनों पड़ी रहती हूँ, देन दैट इज़ डिप्रेशन. दैट्स डिफरेंट. 2-3 दिन के लिए बुरा फील करना इज़ टोटली हेल्दी. यू नीड टू मोर्न, यू नीड टू फील बैड अबाउट द थिंग्स दैट यू लूज एज वेल. ठीक है. The doctor may also suggest blood tests to rule out any other illness that may cause the symptoms of depression. Subsequent treatment depends on the severity of the depression. Psychotherapy, antidepressants may be offered to help the person cope with everyday life. For mild to moderate depression, exercise can be helpful. In severe cases, hospital admission or medication for psychotic symptoms may be needed. देखिए, जो माइल्ड लेवल का है उसमें सबसे पहली चीज़ जो साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट सजेस्ट करता है वो आपकी डाइट चेंज करता है. डाइट चेंज करने से बहुत सारे चेंजेस आते हैं. स्लीपिंग पैटर्न को बेहतर करने से भी बहुत चेंजेस आते हैं. आप में से कुछ बच्चे होंगे जो रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं, या उनसे वो मैनेज नहीं होता बिकॉज दे लव द नाइट टाइम एंड वो उसमें जागते हैं, इसलिए सुबह उनसे उठा नहीं जाता. अगर वो उसको मैनेज कर ले तो डिप्रेशन कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है. आपको पता है जब हम घर से 6-7 घंटे बाहर रहते हैं तो कुछ ना कुछ जंक से खा ही लेते हैं, कैफे से कुछ ना कुछ थोड़ा सा ले ही लेते हैं. तो जितना जंक आप खाते हैं उतना आप डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, बिकॉज इट हैज़ एन इफेक्ट एज वेल, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है. लेकिन सिवियर केसेस में साइक वार्ड होता है जहाँ पर एडमिशन दिया जाता है. आपने पिम्स देखा होगा. दिस इज़ अ वेरी फेमस हॉस्पिटल, इस्लामाबाद में है, जी सेक्टर में समवेयर, ब्लू एरिया के पास है जी, सेंटोरस के सामने, यस इस तरफ जी. वहाँ पर साइक वार्ड है. कभी आपका वहाँ चक्कर लगे, आई वॉन्ट यू टू गो एंड विजिट इट. जी जी जाने देते हैं, जाने देते हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल था कुछ अरसे तक, जाने देते हैं जी. क्या कह रहे हैं?
You will see people chained to their beds. उनके जो कमरों में वो हैं उनको उनके कमरों के साथ बांधा हुआ है क्योंकि वो सेल्फ हार्म करते हैं। जी पास मांगते हैं। Okay, the system could have changed. I went there back in 2018. I don't remember. I went to see somebody. They were in the psych ward, and all she could say that don't hit me. So that showed कि वो कह रही थी कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, which eventually showed कि किसी ने उसको physically बहुत मारा है और उसने उस चीज़ को इतना feel कर लिया है, उसकी traumatized हो गई है कि वो उससे बाहर ही नहीं आता। वो उसका coping mechanism है कि उसकी body भी fits देगी। Do you know what are fits? फिजिकल झटके पड़ते हैं कि आप अपनी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें ऐसा लगता है, वही बात है, जनरल पब्लिक को लगता है भूत जिन आ गया इसको। वो क्योंकि वो सेंसिटिव इतना हो जाते हैं, इमोशनली वो हैंडल नहीं कर पाते। ये जो रिक्शाज होते हैं या पिंडी की जो साइड पे दीवारें उस पर लिखा होता है हम मंशियात, भूत प्रेत और नफ्सियात का इलाज करते हैं। हैव यू सीन दैट? हाउ दे कैटेगराइज साइकोलॉजी विद बीइंग something has to do with the supernatural, क्योंकि उसको पता है जनरल पब्लिक के पास नॉलेज नहीं है, हम उनको कुछ भी कह के ये चीज़ बेच देंगे। यस जी बेटा, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन मोस्टली ये जो एडवर्टिजमेंट्स होती हैं दे आर फेक और वो सिर्फ पैसे बनाने का एक तरीका होता है। सो डिप्रेशन में आपके पास सिम्टम्स हैं, कॉजेज हैं, ये डायग्नोस कैसे होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सब कुछ है। इसकी रेमेडी क्या है वो हम इवेंचुअली सारे डिसऑर्डर्स पढ़ने के बाद मैं आपसे शेयर करूँगी। अब अगर आपके पास डिप्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो आई विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। Psychotherapy is a kind of a therapy in which there will be different psychological tests conducted by the psychologist in order to diagnose and rule out whether it's a physical induced psychological problem। जैसे जो औरत कह रही थी मुझे मत मारो, पहले फिजिकल ट्रॉमा दिया गया, उसके बाद साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आया। समटाइम्स फिजियोलॉजिकल या फिजिकल ट्रॉमा नहीं होता और इंसान सीधा ट्रिगर होता है। इस सारी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए साइको एनालिटिक टेस्टिंग होती है, साइकोथेरेपी होती है या साइको टेस्टिंग होती है, इससे पता चलता है। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, अगर आप चाहें तो आप सर्च करके 2-3 टेस्ट के नाम भी लिख सकते हैं इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक इंट्रोवर्ट है, उसको एक एक्सटर्नल फैक्टर और स्ट्रेस दे रहा है, वो ऑलरेडी हर चीज़ को जज करता है, वो प्री जजमेंट के साथ आता है, वो स्ट्रेस उसे इतना ट्रिगर कर सकते हैं कि वो सेल्फ हार्म या दूसरों को हार्म कर सकता है। दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। एंग्जाइटी अभी हम पढ़ेंगे काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन समटाइम्स सर्टेन थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। हर चीज़ इंसानी कंट्रोल में नहीं हो सकती, ठीक है। जब आपको दुख होता है व्हेन यू आर फीलिंग लो, जब आपका रोने को दिल करता है, आप चाहें भी तो एक पॉइंट पे आप जाकर रोएंगे, आप उसको रोक नहीं पाते, ठीक है। एक पॉइंट पे आप एक क्राउड में और आप वहाँ से जाना चाहते हैं, यू नॉट फीलिंग वेल, आप जितना भी कंट्रोल कर लें, एक पॉइंट पे यू विल रन आउट, आप कहेंगे बस मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ। वो क्योंकि इंसान की कंट्रोल में सब कुछ नहीं है। यस, एक्शंस हमारे हैं, सोच हमारी है। आई कीप ऑन टेलिंग यू कि वी कैन ट्रेन आवर माइंड्स, हम अपने माइंड को ट्रेन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस ही है, ठीक है, लिमिटेशंस होती हैं। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, देखिए आप अभी राइट नाउ आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपने रात को भी डिनर नहीं किया था, ठीक है, एंड यू आर क्वाइट हंग्री नाउ राइट नाउ, क्योंकि काफ़ी आवर्स हो चुके हैं, राइट। उसके बाद बहुत ज़्यादा भूखा रहने के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ फेंट होने लगते हैं, ठीक है, फेंट होने लगते हैं, पसीना आता है, हार्ट बीट अजीब सी हो जाती है, स्टमक में कुछ फील होता है, ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम है, पॉइंट 1।
साइकोलॉजिकली आप मुझे सुन नहीं पाएंगे, you won't be able to focus on it, and उसका जो रिएक्शन होगा कि आप यहाँ फेल नहीं होना चाहते, आप कुछ ऐसा बर्स्ट आउट नहीं करना चाहते, you will walk out, you will go outside and try to breathe or try to sleep something, ऐसा ही होगा सर। दो चीज़ें होंगी, या तो आप बाहर चले जाएंगे या यहाँ बेहोश होंगे, दो चीज़ें होंगी। बेहोश होना मेजॉरिटी पसंद नहीं करते हैं बाहर जाने, you understand? तो वो रिएक्शन इस तरह से निकलेगा कि एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन साइकोलॉजिकल लेवल पे किस तरह। और अगर हमें सिर्फ साइकोलॉजिकल की बात करनी है तो एक जो सीरियल किलर है वो किस पैटर्न पे काम करता है, क्यों करता है, फिर उसका डायग्नोसिस एक बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन इमीडिएट फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट आपने देखना है तो भूख लगना, अगर आप 3 दिनों से सोए नहीं आप नहीं बैठ पाएंगे, एक नॉर्मल इंसान वो कुछ नहीं कर पाता। 3 भी क्या मेरा ख्याल से 2 दिनों के बाद बंदा नहीं, मैं मैक्सिमम 2 दिन मैंने जाग के देखा है, वो एक पॉइंट आता है लाइफ में बंदा नहीं होता कुछ भी, बेशक आपने खाना पूरा खाया है, यू कैन नॉट फोकस, इवेंचुअली फॉल डाउन। ये सारी चीज़ें आपको देखनी ओके, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? कुछ लोग होते हैं बस फिर वो इवेंचुअली अगर उन्होंने 2 दिन से पानी भी नहीं पिया, इवेंचुअली डिहाइड्रेशन बहुत लेवल पे जाएगी और यूल सी वो फनेटिकली बिहेव करना शुरू कर देंगे। Okay, the second disorder that we are going to talk about is PTSD, post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder यही है कि एक traumatic experience हो चुका है, उसके बाद आपके पास कोई stress disorder generate होता है। जैसे वही खातून जो मैंने आपको बताई है जो कह रही थी डोंट हिट मी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, उन्हें फिजियोलॉजिकली इंजरी दी गई है, उन्हें इतना मारा गया ओवर द टाइम पीरियड कि वो स्ट्रेसर जो है वो इतने लेवल पे जा चुका है कि अब वो अपने बॉडीली मूवमेंट्स को या अपने अटरेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो अब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। दिस इज़ अ सिवियर एंजाइटी डिसऑर्डर दैट मे डेवलप एनी टाइम आफ्टर अ पर्सन एक्सपीरियंस और विटनेसेस अ टेरिफाइंग और लाइफ threatening event or a series of events over which they have little or no control. Domestic violence में mostly जिस पे domestic violence हो रही होती है, be it a male or a female, उनके पास control नहीं होता, that is why they have to go through that domestic violence. ठीक है, वो सालों का हो सकता है, months का हो सकता है, days का हो सकता है, right? वो भी PTSD में आता है। जैसे खुदा ना खास्ता if somebody was in an accident और एक्सीडेंट बहुत सीवियर था, उनको बहुत टाइम लगा उससे बाहर आने में, तो उनको काफ़ी सारा टाइम लग सकता है टू गो बैक टू द ड्राइविंग बिकॉज PTSD इज़ रियल। जैसे कुछ दिन पहले आई एट समथिंग फ्रॉम ढाबा, कोई चाट खा ली थी या पता नहीं चना चाट थी या समोसा चाट, माई स्टमक गॉट अपसेट वेरी बैडली बिकॉज वो बहुत 2 weeks ago और मे बी 3 weeks बहुत मिर्ची थी, उसमें मिर्चें मैं खाती नहीं, लेकिन उस वक्त आई वॉज हंग्री, मैंने खा लिया और वो एक रिएक्शन हुआ, मेरा स्टमक अपसेट हो गया। ठीक है, अब कल सब बाहर खाना खाने गए हुए थे, तो वो जो PTSD वो जो दिमाग में था कि मैंने कुछ दिन पहले बाहर से खाना खाया और मेरा स्टमक अपसेट हुआ, मैंने बाहर से खाना नहीं खाया। यू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अभी बहुत रीसेंट है, मैं अभी भी उससे रिकवर करी, तो मैंने कहा मैंने बाहर से खाना नहीं खाना। ये बहुत ही कह लें कि माइल्ड सा एक्सपीरियंस है, लेकिन जो PTSD है जो रियल लाइफ में लोग फेस करते हैं वो बहुत सिवियर होता है, इंटेंस होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। What is it? How is it defined? PTSD is seen in people who have been in military combat or a serious incident or suffered prolonged abuse or the unexpected injury or death of a family member. आप लोग वॉर बेस्ड मूवीज देखते हैं? नहीं बेटा, ये जो मिलिट्री बेस्ड होती हैं, आई यूज्ड टू वॉच देम अ ईयर अगो और समथिंग, उसमें बड़ा कॉमनली ये शोकेस किया जाता है कि जो लोग डिप्लॉयड होते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वो वहाँ जाके वॉर ऑन टेरर करते हैं। स्पेशली ये जो अंग्रेज़ी शोज़ होते हैं इसमें दिखाया जाता है कि अफ़गानिस्तान गए थे, इराक, ईरान गए थे, एंड व्हेन दे केम बैक
they had PTSD because they had to commit so many foul things over there. बहुत सारे innocent लोग भी क्रॉस फायर में मर जाते हैं और वो फिर आपको वे करता है. बेशक आप एक मिलिट्री कॉम्बैट हैं, आप एक ल्यूटेनेंट है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कैप्टन है, whosoever, अगर आपने किसी इनोसेंट की जान ली और किसी गुनाहगार की भी जान ली है तो उसका एक इम्पैक्ट होता है. इफ़ यू किल समबडी इट डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर साइकी एंड ऑन योर सोल एज वेल. तो वो जो साइकी है वो इवेंचुअली PTSD में जा सकती है. सो एक कैरेक्टर था किसी शो में, वो उसने एटलीस्ट 15 से 20 लोगों को मारा था जिसमें से कोई भी इनोसेंट नहीं था, लेकिन बिकॉज उसने 15 से 20 लोगों को मारा था वो घर वापस आया. ही वॉज नॉट नॉर्मल बिकॉज ही कुड सी देयर फेसेस. उसको जगह जगह वो लोग नजर आए. So that is the classical example of PTSD. There is a show called Homeland. It has 7 or 8 seasons. It is all about PTSD, drug abuse, how these people who are implanted in other countries in order to protect their own country, they go through PTSD. बहुत सारे traumatic experiences उसमें दिखाए जाते हैं कि ये जो combats हैं ये किस तरह से होते हैं. Homeland. It has 7 seasons. आज ख़त्म नहीं हो सकता. The event itself activates the flight or fight reflexes. देखें इस तरह जब PTSD होती है या तो आप लड़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ज़्यादा भूख लगी हो तो या तो आप लड़ना शुरू कर देंगे या बेहोश हो जाएंगे या भाग जाएंगे. Either you take the flight or you fight. PTSD में 2 इंटेंस रिएक्शन होते हैं. एक तो आप अपनी पोजीशन को, स्टैंस को छोड़कर भाग जाते हैं, दूसरा आप फाइट करते हैं. मोस्टली क्या होता है, एग्रेशन ही होता है, फाइट होता है. PTSD में फाइटिंग होती है. जी जिस तरह आपने खाने का बताया कि रात में तो सुबह मतलब कि उससे भूख या वगैरह, लेकिन रमजान में जो तरह नहीं होता ना, बंदे का स्टैमिना का एक कैपेसिटी होती है कि उसमें हम इतनी बर्दाश्त कर सकते. Because you're psychologically prepared for it. It is a dini fariza for you. It is something very sacred and spiritual to you. I'm talking about if something happens which is not in your control. जो फास्टिंग होती है वो कंट्रोल्ड फास्टिंग होती है, आप डिलिबरेटली करते हैं. ऐसा ही है ना, हम सोच समझ के सहरी और अफ्तारी करते हैं, वो हमारा उसको हम इससे अटैच नहीं कर सकते. बेटा दैट्स डिफरेंट, दैट्स टोटली डिफरेंट. क्या कह रहे हो? यस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में भी आएगा, कलेक्टिव में भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखें एज अ कंट्री पाकिस्तान को लेबल किया जाता है कुछ 5-6 वर्ड्स से. टेररिस्ट, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उसामा बिन लादेन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, करप्शन और एक वर्ड होता है. बहुत सारी चीज़ों की. अब जब भी वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे लिए न्यूज़ चलती है तो ये वर्ड्स कहीं ना कहीं यूज़ होता है, कहीं ना कहीं से डिपिक्ट किया जाता है. तो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में ये PTSD है, एक डिप्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज में अच्छे से वेलकम नहीं किया जाता है. व्हिच इज वेरी मच रियल. ऑफ कोर्स जो टीवी में हमें दिखाया जाता है दैट्स रियल. ओके ठीक है, यू नो बेटर. एनीवे आगे देखिए बेटा, इसे ख़त्म कर लें. देखिए the event itself activates fight or flight reflex in the body, putting the person on hyper alert to deal with the consequences of the trauma and protect them from a repeat of the episode. An individual with PTSD feels that the threat remains, so their heightened response is maintained, causing an array of unpleasant symptoms including panic attacks, involuntary flashbacks, nightmares, avoidance and emotional numbing, एंगर, जंपीनेस, इंसोमनिया एंड डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग. जैसे मैंने आपको बताया कि उस मिलिटेंट ने 15 लोगों को मारा, उसको 15 लोगों के फेसेस नज़र आ रहे हैं. ऐसे मिलिटेंट्स भी होते हैं, वो इतने हाइपर अलर्ट रहते हैं क्योंकि वो कॉम्बैट में सालों रहे होते हैं कि अगर कोई अननोन बंदा उनके घर के सामने से भी गुजरे तो उनको लगता है ये ट्रेस पासर है और वो गन लेके उसके पीछे चले जाते हैं कि तुम कौन हो. दैट इज सच इनसेंसिटिविटी उनमें इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो इमोशनली इतने डैमेज हो चुके होते हैं और वो इतना अलर्ट रह रहे हैं कि उनकी दिमाग की ट्रेनिंग होगी कि अलर्ट रहना है. जिस फेस को आप जानते नहीं उसको आपने मार देना है, वो उनकी रिएक्शन, वो PTSD का शिकार होते हैं. ठीक है,
जैसे कि इसके इंट्रोडक्शन में लिखा है कि ये मोस्टली उन लोगों को होता है जो बहुत ही स्वेयर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को एक्चुअली फेस करते हैं। PTSD न्यू मदर्स को भी होता है। अकॉर्डिंग टू अ न्यू सर्वे, जब ख़वातीन बच्चे पैदा करती हैं तो भी उन्हें PTSD होता है। देयर आर सो मैनी वेस्टर्न सर्वेज अवेलेबल इन विच द वुमन रिफ्यूजेस टू होल्ड द चाइल्ड बिकॉज शी इज स्कैर्ड ऑफ इट। अपने ही बच्चे से वो डर भी जाते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी ट्रामेटिक एक्सपीरियंस एज वेल। 58 फ्रैक्चर्स का पेन होता है व्हेन यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है। फ्रैक्चर इज़ वेरी पेनफुल, अगर आपको कभी हुआ है आपको पता हो। तो वो जो ट्रॉमेटिक फिजिकल इंजरी या पेन है वो साइकोलॉजिकली इंड्यूस करता है ये बिहेवियर कि वो दे रिफ्यूज टू होल्ड देयर ओन चाइल्ड। यस, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। आगे देखिए, इंसोम्निया होता है वो जो नींद ना आना, परेशानी से, डिसऑर्डर से, PTSD से नींद ना आना। देन पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स में आपकी बॉडी में जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, आपके हाथ पर कांपना शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ पैनिक अटैक्स। देन डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम आता है। तो PTSD में जब आप PTSD के बारे में लिखेंगे, प्लीज़ डू नॉट थिंक कि आपने इसकी फुल फॉर्म लिख दी, आपने लिख दिया कि मिलिटेंट्स को होता है और आपने लिख दिया इट कॉजेस इंसोम्निया, इट्स सफिशिएंट। इट इज़ नॉट। इफ़ यू मेंशन फॉर एग्जांपल दैट few of the symptoms of PTSD is panic attacks, involuntary flashbacks, insomnia, nightmares, तो इनकी एग्जाम्पल्स भी आप देंगे। Deliberately ऐसे टाइप होगा। For my exam you are not going to have MCQs. I don't want bullet points. I don't want you to make sentences line wise. No, I want you to write full-fledged practical meaning making passages for each of the disorder that you are going to mention in your exam. You understand? Length depend karegi marks distribution pe. Whatever marks have been given to this particular question, as I've told you, 50% of your midterm is going to be based on this particular disorder लिस्ट। तो ये आपको पता होने चाहिए, इनके सिम्टम्स, कॉजेज, रेमेडीज डिफाइन करना, इसकी परसेंटेजेस, इसको आप किस तरह कैसे कितना याद करेंगे आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे, मुझे तस्वीरें बनाकर दे जाएंगे, तो मैं भी आपको तस्वीरों वाले मार्क्स ही दूंगी। यू वांट द मार्क्स, यू एक्सप्लेन इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। आगे देखें, these symptoms usually develop within a month of the event but may not appear for months or years and last for more than 3 months. PTSD can lead to other mental health problems and excessive alcohol and drug use in common. जैसे ये जो मिलिटेंट्स होते हैं, ये सिर्फ वहाँ मार के ही नहीं आते, वहाँ से मार खा के भी आते हैं। हाथ इंजरी हो जाती है, टांगे कट जाती हैं, बाजू कट जाते हैं। That causes a lot of anxiety and related disorders as well. PTSD cause करता है। Although उनको जिनको इन्होंने मारा है वो शक्लें नज़र ना आए, लेकिन अपनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन तो नज़र आती है, और फिर उनको पेन मेड्स पे लगाया जाता है, और पेन मेड्स जो है वो इवेंचुअली एडिक्टिव हो जाती हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स जो होती हैं वो आपकी ड्रग अब्यूज़ बन जाती है, यू कांट लेट इट गो। आपको पता है ना, एक मेडिसिन भी आपको 3 या 4 दिन खाने के लिए कहा जाता है, इससे ज़्यादा वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो सर्टन किस्म की मेडिसिन होती है। पेन किलर्स आपको कहा जाता है या स्लीपिंग पिल कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड से ज़्यादा आपने नहीं खानी, क्योंकि वो एडिक्टिव होती हैं। तो ड्रग अब्यूज़ एंड alcohol abuse is very common in the patients of PTSD. Watchful waiting is advisable at first to see the symptoms subside within 3 months, as treatment too early can accelerate PTSD. Treatment यहाँ पर लिखा हुआ है trauma focused therapy and compassion focused therapy. इन दोनों therapies पे, types पे you will make your own notes. They are very easy. Trauma focused therapy ये होगा कि they will gather a bunch of people who have gone through the same kind of traumatic experiences, and then they will make them sit together and talk to each other, and then they will give them some exercises, some health diet changes and some medicines as well if required in order to combat it. दूसरा compassion focused therapy, उसमें भी यही है, ये सेल्फ सूदिंग है, जिसमें इंडिविजुअल लेवल पे 101 आप अपने थेरेपिस्ट के साथ बैठकर कंपैशन को डील करते हैं। कंपैशन इज हैविंग कंपैशन फॉर योर ओन सेल्फ दैट यू हैव गॉन थ्रू दिस एंड यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। सबसे पहला स्टेप किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बाहर निकलने का यही होता है दैट यू एक्सेप्ट इट, दैट यू हैव इट। वंस यू एक्सेप्ट इट ओनली देन यू कैन कम आउट ऑफ इट। जब एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो उसको आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो कंपैशन थेरेपी कैन हेल्प यू इन दैट वे।
PTSD is a survival reaction. As I've told you, combats जो हैं वो हर वक्त survival action में रहते हैं कि जो ना जाना पहचाना चेहरा है वो मेरा दुश्मन है, तो survival instinct पे हमेशा hyper active रहता है. The symptoms results from an aim to help survive further traumatic experiences include raised level of stress hormones and other changes in the brain. Because आप continuously एक फ्रेंजी में रहते हैं, एक विशियस सर्कल में रहते हैं, तो आप में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मूड चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं. ये चेंजेस बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं. उसके बाद यहाँ पर 4 डिफरेंट किस्म के टाइप्स लिखे हुए हैं जो आप पढ़ें. Let's read it together. Hippocampus. PTSD increases stress hormones. यह एक stress hormone है which reduce activity in the hippocampus and make it less effective in memory consolidation. Both the body and the mind remain alert because the decision making ability is reduced. ठीक है? So this part of your brain is affected by your being too alert all the time. Then you have prefrontal cortex. Do you know what is a cortex? Cortex नहीं देखा कभी? बायो तो पढ़ी होगी कभी ना कभी. मैं बताऊँ. ये देखें, ये पता है ये क्या है? What is it? ब्रेन है. अब आप ब्रेन के सामने देखिए 4 कलर्स में इसको बताया हुआ है. ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. यहाँ पर जो चेंजेस होंगे, ठीक है, वो भी PTSD कॉज करते हैं. कैसे? ये देखें, trauma affects the function of their prefrontal cortex, changing behaviors, personality, and complex cognitive functions such as planning and decision making. Behavior और personality अब तक I hope you understand कि उसको कैसे करना है. Complex cognitive functions ये होते हैं thinking capacities, the way you think, the way your mind works. उसकी complexity में problem create होती है अगर आप PTSD से गुजर रहे हैं prefrontal cortex में. Then you have hypothalamus. Do you know what is hypothalamus? Part of brain. Yes, it controls the hand movements. मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखें, आपके माइंड में यहाँ पर इसके पीछे जहाँ आपकी गर्दन है उससे थोड़ा सा 2 इंच ऊपर मिडल में हाइपोथैलेमस है. इसको अगर ज़रा सी पेन भी लग जाए, यू विल गो रिटार्डेड. आप रिटार्ड हो जाएंगे. योर हाइपोथैलेमस इज सो इम्पॉर्टेंट. आप हेलमेट पहनते हो, वो आपकी इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हाइपोथैलेमस ये सारी जो आपके बॉडीली मूवमेंट्स हैं, कंट्रोल है, उसको कंट्रोल करता है, उसको मेजर करता है, उसको सपोर्ट करता है. ये देखें, दैट ब्लू थिंग इज योर हाइपोथैलेमस. In PTSD, the hypothalamus sends signals to the adrenal glands on the kidneys to release the hormone adrenaline into the bloodstream and increase the chances of survival. So ये सारे function जो हैं वो hypothalamus करता है. उसके बाद आपके पास आता है amygdala. PTSD increases the function of the amygdala, activating the fight or flight response and increasing sensory awareness. आप में से जो साइंसेस बैकग्राउंड के नहीं हैं, आई वांट यू टू गो होम एंड रीड दीज 4 टर्मिनोलॉजीज विद द पिक्चर्स ऑन. आप जब पिक्चर्स देख के इसको पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी. ठीक है? सो PTSD क्या है, कैसे डायग्नोस होता है, उसकी थेरेपी ट्रीटमेंट क्या है वो मेंशन्ड है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं और कहाँ आते हैं. अगर PTSD पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यू मस्ट राइट मोर देन दीज स्लाइड्स. Slides are not enough. You are going to make more notes on your own. Any questions? Everything is clear? Yes. What is bipolar? What is bi? B-I, bi? 2. And polar?
Polarides क्या होते हैं? You don't know what are polarides? Have you seen that वो पुराने ज़माने का कैमरा होता था? We take pictures और पिक्चर उसी वक्त आ जाती है, उसको आप ऐसे करते हैं और वो पोलराइड्स कहलाते हैं. पोलराइड्स पिक्चर्स बोलते हैं उनको. तो बाइपोलर से क्या मुराद होगी? पिक्चर वही निकल आती है, इंसान की रिफ्लेक्शन एंड अदर सेल्फ, two personalities, two shades of personalities that are so intense that it becomes very problematic for one individual to identify which is your real self. For example, at one time you're very humble, very nice, nurturing, welcoming, affectionate, and एक सेकेंड के फ्लिप से आप बहुत रूड, श्रूड, बदतमीजी पे, एरोगेंस पे आ जाते हैं. तो ये दो जो एकदम से चेंजेस आते हैं, दे आर वेरी वेरी बाइपोलर, दीज पीपल. मूड स्विंग्स की एक ऐसी लिमिट, एक ऐसी एक्सीडेड लिमिट जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते. मूड स्विंग्स माइल्ड भी होते हैं, बहुत माइनर भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, ये सिवेरिटी से आगे चले जाते हैं जो बाइपोलर होता है. स्प्लिट पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, स्किज़ोफ्रेनिया इज डिफरेंट, बट येस, bipolar could be one of the diagnoses going towards schizophrenia. Schizophrenia और उसमें split personality में तो आप बिल्कुल ही detach हो जाते हैं. इसमें आप detach नहीं होते. You know it but you can't control it. There are abrupt lines नहीं है इनको apart करने के लिए. यानी आप एक बीमारी को पीछे छोड़ के अगली में नहीं जा सकते. Connections हैं लेकिन उनमें differences भी हैं. So this condition is characterized by extreme swings, like you said, high and lows in a person's energy and activity levels, which is why it was originally called manic depression. Who's a manic? अच्छा, आपने maniac सुना होगा. Have you heard the word maniac? What is it? पागल को कहते हैं. Mentally unstable, hyperactive, hyper alert, ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है. तो bipolar को before it was called bipolar, it was called manic depression. What it is? There are 4 types of bipolar disorder. Now you see there are 4 types, 4 levels, 4 intensities, 4 stages. और अगर आप एक स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे हेल्प एक्वायर नहीं करते तो आप 4th स्टेज पर पहुंच सकते हैं. फर्स्ट वन इज bipolar 1. It is severe mania lasting for more than a week. The person may need hospitalization. Bipolar 2 causes swings between a less severe mania and low mood. Then we have xylosthemia, features longer term hypomanic and depression episodes lasting for up to 2 years. An unspecified bipolar disorder is a mixture of the 3 types. First type is जो 2 हफ्तों से ज़्यादा exceed कर जाए और you have to be hospitalized. That is bipolar 1. Then you have bipolar 2 जिसमें आपके पास severe switch है, आपके पास flip है. That is bipolar 2. And bipolar 3 is that lasts for approximately 2 years. And जो 4th type है वो इन तीनों की mixture है, amalgamation है. So these are 4 types of bipolars. During a mood swing, an individual can undergo extreme personality changes which puts social and personal relationships under severe strain. जैसे आपने शायद घरों में अपने relatives में या neighborhood में देखा होगा कि there is an individual, they are very nice to you, they talk to you nicely and everything. Most of the time they are very nice, but when they are angry, they lose it. ऐसे level का वो वबाल खड़ा करते हैं कि it's unbelievable that it's the same person. There is one man who lives in my street. He is like that. बहुत अच्छे हैं, very polite, very calm, नमाजी परहेज़ी, very nice, हेल्पफुल. लेकिन जब उन्हें गुस्सा होता है तो जिस लेवल की वो अब्यूज़ देते हैं अनबिलीवेबल है. यकीन नहीं आता कि वही इंसान है जो डेली लाइफ में बहुत अच्छे से बिहेव करता है. वो भी उनको गुस्सा भी जेन्युइन बात पे आए, लेकिन वो जो रिएक्शन है दैट्स टू इंटेंस. आई एम नॉट डायग्नोजिंग हिम विद बाइपोलरनेस, बट आपको स्विंग बता रही हूँ कि स्विंग्स ऐसे भी हो सकते हैं. उसके बाद देखें, the main cause of bipolar is commonly believed to be an imbalance in the chemicals involved in the brain function. So we have certain chemicals in our head. Yesterday we talked about 4 parts of our head. Prefrontal cortex था, उसमें hypothalamus था और 2 और चीज़ें थी. Did you try and look at it? पढ़ा उसको आपने? Good. Known as neurotransmitters, these chemicals include
norepinephrine, serotonin and dopamine, and relies signals between nerve cells. Now these three words, इसकी कोई explanation नहीं, आपको इसी तरह याद करने पड़ेंगे. You understand? इन तीनों केमिकल्स के अपने अपने फंक्शंस हैं. अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर चाहिए, आप उन फंक्शंस को समझ सकते हैं और अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, राइट? Genetics also play a role. Bipolar disorder runs in families and it can develop at any age. Genetics क्या होता है? What are genetics? Genes. Genes simply put जो आपको अपनी फैमिली से कन्वे किए जाते हैं, पास किए जाते हैं. जैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, हाइट होती है, बॉडी शेप होती है, समटाइम टेम्परामेंट जो होता है. अगर फादर टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, यूजुअली बच्चों का भी अच्छा होता है. अगर अम्मी सख्त हैं तो उस घर की लड़कियां सख्त होने का चांस, अबू सख्त हैं तो बॉयज़ सख्त होने का चांस है. तो वो टेम्परामेंट भी ट्रांसफ़र होता है. ऑल्दो इट इज़ लर्नड, इट इज़ नॉट जेनेटिक, लेकिन समटाइम्स जेनेटिक भी हो सकता है. और अगर किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर है, फिजिकल डिसऑर्डर है, डिसफंक्शनैलिटी है, तो वो भी पास ऑन हो सकता है. जैसे डाउन सिंड्रोम इज़ वेरी कॉमन. इफ़ द मदर और फादर हैज़ द डाउन सिंड्रोम, इट्स वेरी लाइकली दैट द चाइल्ड इज़ गोइंग टू हैव द सेम. तो इस तरह से. और उसके साथ बाइपोलर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है. इट इज़ थॉट दैट 2 in every 100 there are certain people who go through it. There is a book on it. मैं आपको वो बुक शेयर कर दूंगी, अगर आप उस पर और इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं. अब आप इस पिक्चर को गौर से देखें. इस पिक्चर से क्या समझ आ रही है आपको? अगर आप पिक्चर को गौर से देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट? देखिए, ये जो चल रही है, उसकी गाड़ी जो स्टार्ट से हो रही है, वो बैलेंस्ड नॉर्मल मूड से स्टार्ट हो रही है. फिर एक पॉइंट पे हाइपोमैनिया पे आ जाता है. मैनिया क्या है? क्रेजीनेस, imbalance, some behavior which is unjustified or objectionable, which is not understandable. समझ नहीं आ रही कि ऐसा रिएक्शन क्यों आ रहा है. What is hypomania? It is the form of mania lasting a few days. An individual can be highly productive and function well. It can proceed towards full mania. देखिए, उस पॉइंट पे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको फील होने लग पड़ेगा, उनके साथ रहने वाले लोगों को भी फील होने लग पड़ेगा. आपको पता है ADHD क्या है? नहीं? अच्छा चलें, आपने शायद ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं. सारा दिन खेलेंगे, पढ़ाई करेंगे, ट्यूशन भी जाएंगे, फुटबॉल भी खेल के आएंगे, क्रिकेट भी खेल लेंगे, साइकिल भी चलाएंगे, और फिर जब सोने आते हैं तब भी नींद नहीं आती. यस, दे टॉक अ लॉट, एज दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस, दे पोज सो मेनी क्वेश्चंस. ये ऐसा है तो वैसा क्यों है? कोई ऐसा बच्चा कभी देखा है आपने? और आजकल की मेजॉरिटी बच्चे ऐसे ही हैं, वेरी हाइपर एक्टिव. अब उनका मैं ये डायग्नोस नहीं कर रही. इट हैज़ टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 months. यही एक्टिविटी, यही बिहेवियर चलना ज़रूरी है. अगर एक बच्चा इतनी इंटेंसली हाइपर एक्टिव है और इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी उसको अगर रात को नींद नहीं आ रही, उसको सुलाने के लिए डराना धमकाना पड़ रहा है, then there is a problem. Then that is a form of ADHD. That also comes from mood swings. ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें. अब देखिए, माइल्ड भी हो सकता है, स्वेयर भी हो सकता है. समटाइम्स हफ्ते में एक दिन आता है आपका, जिस दिन आप अपने घर को या अपने रूम को या अपने हॉस्टल को पूरा चमका के रखते हैं. बाकी 4 दिन क्या करते हैं? कपड़े इधर, जूते उधर. मेरा जो भांजा है वो तो जो खाना खाता है, जो भी रैपर्स होते हैं बेड के नीचे से निकलते हैं उसके. आप लोग कहाँ फेंकते हैं? एक भांजा है वो अपने बैग में सबमिट कर ही रखता है, और फिर उसकी मदर निकालती है, 5वें दिन उसको साफ करती है. आप तो सड़क पे फेंक देते हैं. यस यस यस, कहीं भी फेंक दिया. मेरे पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के पास तो बैग ही नहीं होता, तो वो तो रख ही नहीं सकती. बॉयज़ के पास भी नहीं होता, तो फिर आप फेंक देते हैं ना इधर उधर. जी, ओके. आगे देखें, हाइपोमेनिया, मेनिया, माइल्ड डिप्रेशन. अब आप कह रहे थे ना कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कल किसी ने पूछा था इसमें क्या फ़र्क है. अब आप देखिए, डिप्रेशन से आप हाइपोमेनिया की तरफ जाएंगे. डिप्रेशन से पहले एंग्जाइटी आएगी, एंग्जाइटी से पहले लो फील करना आप स्टार्ट करेंगे. ये सब कुछ कनेक्टेड है, इट्स अ साइकिल. यू कैन नॉट टेक अ पार्ट डिप्रेशन फ्रॉम PTSD, यू कैन नॉट टेक अ पार्ट एंग्जाइटी फ्रॉम डिप्रेशन, और बाइपोलर को भी आप डिप्रेशन से अलग नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स contribute towards bipolar disorder as well. How is it diagnosed?
The affected person is assessed by a psychiatrist or a clinical psychologist who asks about the symptoms and when they first occurred. देखिए आपको खुद भी फील होने लग पड़ेगा अगर ये इस तरह से कोई सिम्टम होने लग पड़े, आप हाइपर एक्टिव फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, आपको फील होता है कि स्लो डाउन साथिया क्या हो गया, टेक अ ब्रेक, आप खुद सोचते हैं, तो वो आप खुद डॉक्टर को बता सकते हैं कि ये सब हो रहा है. Signals leading up to the episodes are explored too. The doctor also looks to eliminate other conditions that can cause mood swings. Sometimes अगर आप properly खाना नहीं खा रहे 2-3 हफ्तों से तो भी mood swings हो सकते हैं. न्यूट्रिशन में अगर डिसबैलेंस इम्बैलेंस आ जाए तो भी mood swings होते हैं. It's very common. The individual is usually treated with medication and lifestyle management techniques. इन techniques में sleep patterns होते हैं, खाने के patterns होते हैं. मोस्टली इन सारे प्रॉब्लम्स से साइकोलॉजिकल कंडीशंस या मेंटल कंडीशंस से निकलने का सबसे आसान तरीका ये होता है जो हर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट आपको बताएगा कि स्टे बिजी, गेट अ रूटीन. अगर आप बिजी रहते हैं, आपके पास एक रूटीन फॉलो करने को है, इट्स वेरी अनलाइकली कि वो जो एक मुंतशिर किस्म की हमारे थॉट प्रोसेसेस होते हैं वो आपको परेशान करें. डाइवर्स थॉट प्रोसेसेस जो हैं वो आपको बहुत प्रॉब्लम में लैंड कर सकते हैं अगर आप एक जगह फोकस नहीं कर सकते. For example, tomorrow is your exam and all you can think about is a movie or a KFC burger or talking to your friend or going on a trip. That's a problem. You need to set a goal that there is an exam and I need to be prepared for it. तो जितना आप सोच को डेवलप करेंगे उतने आपके एक्शंस में भी वो शोकेस करेगा. तो अगर आपके पास एक रूटीन है, आपके पास एक लिमिट, आपने बाउंड्री सेट की हुई है कि मैं इस दिन में ये करूँगा और इतना करूँगा, तो वो बेहतरीन चीज़ है. जैसे जिम जाते होंगे आप में से मोस्टली बच्चे, तो जिम भी एक रूटीन का पार्ट है. अगर आप जिम करते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कंफर्म व्हाट आई एम अबाउट टू से इज इट मेक्स यू फील हेल्दी एंड लाइट. जब आप जिम करके आते हैं तो एक हैवीनेस सी जो होती है वो कम होती है. यू फील लाइट, यू फील लाइक यू हैव अकम्पलिश्ड समथिंग, यू हैव डन समथिंग विच इज़ मीनिंगफुल. फील होता है. कौन कौन जिम करता है? आपको ऐसा फील होता है? बिल्कुल होता है. आपकी रूटीन होगी. अगर आप शाम को जाते हैं तो वही 7-8 का टाइम होगा, मॉर्निंग में जाते हैं या अगर घर में भी करते हैं तो एक टाइम आपने एलोकेट किया होगा. तो ये जो रूटीन है इट हेल्प्स यू कॉन्कर ऑल दोज मूड स्विंग्स लीडिंग टुवर्ड्स नंबर ऑफ डिजास्टर्स प्रॉब्लम्स. जब आपके पास एक रूटीन है तो रूटीन इसलिए भी मैनेज करने के लिए हर कोई हमें कहता है, जैसे हमसे नहीं होती ना ब्रेकफास्ट नहीं हम टाइम पे कर पा रहे होते, टाइम पे उठ नहीं पा रहे होते. जैसे इस क्लास में जो मॉर्निंग क्लासें होती हैं, आप में से मेजॉरिटी ने आके मुझे ये कहा है कि मैडम सुबह नहीं उठा जाता. सो वो रूटीन सेट ना करने के प्रॉब्लम्स है. एक दफ़ा सेट हो जाए तो उठा जाएगा. एक दफ़ा सेट कर लें, 2-3 हफ्तों की तंगी है, उसके बाद आदत हो जाएगी. लेकिन वो प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है. एनी हाउ, ट्रीटमेंट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड मूड स्टेबलाइजर्स. माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज़ वेरी ईजी. इसमें मैंने आपको बताया बेटर डाइट, बेटर स्लीप पैटर्न्स, रूटीन, एक सेट बाउंड्री को आप फॉलो करें, गोल्स को फॉलो करें. वो फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हो जाएगी. जब मैनेजमेंट हो जाएगी तो स्विंग्स और इन चीज़ों को सोचने के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा. जब स्पेस ही नहीं बचेगा तो आप ऐसी उस तरफ परेशानी की तरफ जाएंगे नहीं. वो नहीं कहते कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर है, इट इज़ सेड सो. तो इफ़ यू कीप थिंकिंग, इफ़ यू ओवर थिंक और हर चीज़ को ज़्यादा सोचने से इवेंचुअली वो इट एंड्स अप इन अ रॉन्ग मैनर. ये सेल्फ एक्सपीरियंस से भी मैं बता रही हूँ. आई एम एन ओवर थिंकर, मैं ज़्यादा सोचती हूँ. तो सोचने से क्या होता है कि जो काम हो सकता था शायद वो परफेक्शन के लेवल पे, आइडियलिस्टिक लेवल पे ना होता, लेकिन हो सकता था, वो करते करते वो डिले ही हो जाता है. ठीक है, तो ये एक टेक्निक है जो एज अ स्टूडेंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि परफेक्ट असाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है. यू अंडरस्टैंड? हम ये कहते हैं नहीं इसमें ये ऐड करना है, वो ऐड करना है, उसके चक्कर में हमारी डेडलाइन चली जाती है और वो फिर स्कोर चला जाता है. एटलीस्ट डू समथिंग, सबमिट समथिंग, कुछ तो करें, स्टेप तो लें. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़, इस पे कॉग्निशन यानी थिंकिंग पैटर्न्स को ट्रेन करने में आपकी हेल्प की जाती है. वही आपको एक ग्रुप के साथ बिठाया जाएगा, एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ बिठाया जाएगा जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा है. यू गाइस कैन शेयर विद ईच अदर. आपको पता है वो हम ये कहते हैं ना कि जिसको लगती है उसी को समझ आती है. तो जिस किस्म के एक्सपीरियंस से मैं गुजरी हूँ, अगर वो सामने वाला भी वैसा ही है तो मुझे ऐसा लगेगा कि आई एम मोर वेलकम्ड बिकॉज he or she has gone through the same kind of experience, so they can relate with it. जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, अगर वो बहुत ही अनरियलिस्टिक हों तो वो समझ नहीं आती. until unless आपको मैजिकल रियलिज्म पसंद है और
ये जिन ड्रैगन्स और ये चीज़ें उड़ती चीज़ें खुद पसंद हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप ह्यूमन लेवल पे सोचें, अगर स्टोरी बहुत ही अनरियलिस्टिक है तो वो फ़नी ही लगेगी, उसका कोई मकसद नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। जैसे ये जो हिंदी, एक तो हिंदी मूवीज़ होती हैं और तेलुगु और साउथ की और इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं, उसमें एक कोई सीन आता है, एक मीम आता है, उसमें एक बंदे को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट चाहिए, वो यहाँ से फेंकता है, वो उड़ के जाता है और वो वहाँ पे सेट होता है, वो पंप करने लग पड़ जाता है ना। दिस इज सो रिडिकुलस। अब इस मूवी का क्या मकसद हो सकता है? अब ये ठीक है, अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, तो हंसने के लिए अच्छा है कि वाह ये भी हो सकता है। ये वाले हीरोज़ जो होते हैं, मुझे भी हंसी नहीं आती इन बातों पे, लेकिन मैंने देखा है लोगों को आती है। ये हीरो 5 लोगों को एक मुक्का मारते हैं, 5 उड़ के कहीं गिर जाते हैं। दैट्स वेरी अनरियलिस्टिक, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ये एक डिपिक्शन है, ये भी एक टारगेट ऑडियंस है कि जो ऑडियंस अनरियलिस्टिक चीज़ें देखना चाहती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी की, यानी आपकी थिंकिंग पैटर्न्स के साथ खेलने का मजाक है सारा, अगर आप इसे समझ सकें। इसी तरह ये जो सिगरेट्स के एड्स आते हैं, मोटर बाइक्स के आते हैं, गाड़ियों के आते हैं, ये जो बाल ट्रिम करने वाली मशीनरी होती है, ट्रिमर, इसके आते हैं, इसमें फीमेल्स को शोकेस किया जाता है। ये भी एक टारगेट है दैट मेन शुड फील दैट women like these things and that's why they need to do it. You understand? तो ये इस तरह की थेरेपी आपके साथ की जाती है कि अगर आप ये गोल सेट करके अचीव करेंगे, आप इस माइलस्टोन को अचीव करेंगे, इस माइलस्टोन को अचीव करेंगे तो अगले पर जाएंगे। तो इस तरह से आपके थिंकिंग पैटर्न को, जैसा आप सोचते हैं, बीट नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, मिक्सचर, उसको टारगेट करके आपके लिए थेरेपी डिवाइस की जाती है अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल नीड्स. Then we have mood stabilizers. It takes longer than the other kinds of therapies that are available. इसके अंदर आपको मेडिसिन दी जाती है, डोसेजेस होती हैं, पहले मॉनिटर की जाती हैं कि आप कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं, इंड्योर कर सकते हैं, और इस तरह से आपको मूड स्टेबलाइजर्स दिए जाते हैं। और ये तभी दिए जाते हैं जब आप हाइपोनीमिया या उसके मेनियक लेवल के एक एक्सटेंट लेवल पर जा चुके हैं जहाँ पर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है। अदरवाइज बिहेवियरल थेरेपी एंड कॉग्निटिव थेरेपी से ही हेल्प की जाती है, यानी बातों से हेल्प की जाती है, लाइफस्टाइल चेंज से किया जाता है, मेडिकेशन नहीं दी जाती। सो दैट इज़ ऑल अबाउट बाइपोलर दैट यू नीड टू नो. Okay, this is the better picture of what I was trying to show you. Bipolar is a challenge, but it can set you up to be able to do almost anything. ठीक है, बाइपोलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकते. यू कैन इफ़ यू गेट हेल्प, राइट. फिर देखें रोलर कोस्टर, देखें वही, वो बच्चा जा रहा है, उसके पास पैसे हैं, वो फिर नीचे जा रहा है, माइल्ड डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, और उसके बाद मिक्स स्टेट की तरफ जा रहा है. मेनिया क्या है? दिस वे फॉर्म may last a week or more. Symptoms include hyperactivity, rapid, uninterruptible and loud speech, risk-taking, lack of sleep and inflated self-image. अच्छा, अगर आप इसको गौर से सोचें तो कहीं ना कहीं लाइफ में इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते आपने ये फील कर लिया होगा. यस, लैक ऑफ स्लीप तो किया है, कर लिया. एक पॉइंट पे आके आपको नींद नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही. हाइपर एक्टिविटी भी आप कर चुके हैं, एक्सपीरियंस की है. हाइपर एक्टिविटी कुड बी एज सिंपली एज समथिंग दैट यू आर क्लीनिंग योर हाउस ट्वाइस अ डे. यू हैव गॉन नट्स और आपने अपने किचन को या जिस लिविंग स्पेस में आप रहते हैं उसी को साफ करी जा रहे हैं. ओसीडी, वही बात है कि ओसीडी भी इससे कनेक्टेड है. इट्स नॉट जस्ट अपार्ट फ्रॉम इट. यस, नहीं देखें, अगर आपको खुद समझ आ गई है कि 2 वीक्स हो चुके हैं एंड नाउ इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी टू कंट्रोल इट. यस, अगर आपको समझ है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप डेफिनेटली वो सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जो ये हमें बता रहे हैं कि रूटीन सेट करें, कोशिश कर सकते हैं. लेकिन अगर ना हो तो फिर यू नीड हेल्प. हो सकता है, पॉसिबल है, यू कैन सेल्फ कंट्रोल, एंड मोस्टली इट इज़ अबाउट सेल्फ कंट्रोल. एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपकी हेल्प करेंगी वो आपको तभी हेल्प कर सकती हैं जब आपको हेल्प चाहिए. फोर्सफुली हेल्प नहीं हो पाएगा. बिजी रखें. वही बात है कि फिर अकेले मत रहें. लेट्स से आपके पास पूरी रूटीन में कहीं 6 घंटे अकेले में है, उसमें 3 घंटे सो लें, ठीक है, और 3 घंटे किसी से फ़ोन पे बात कर लें, ऑनलाइन चैटिंग कर लें, किसी फोरम का हिस्सा बन जाएं,
ब्लॉगिंग कर लें, व्लॉगिंग कर लें, डू समथिंग, बी बिजी, दैट्स व्हाट दे से. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं दे ऑलवेज टेल यू टू स्टे बिजी. एनी क्वेश्चंस? देखिए कोई क्वेश्चन हो बाइपोलर डिसऑर्डर से? No questions? Okay, I'm repeating it again because I can see more strength today. 50% of your exam is going to be from psychological disorders, so pay attention. How you're going to pay attention? You should know how to define it. What are the symptoms? What are the causes? What are the possible treatments available? And then you should be able to make a connection of these psychological disorders and their understanding with your particular field. If you're from CS, you should be able to write a paragraph or 2 paragraphs that how knowing these psychological disorders help you in the long run as a student, as an individual, as a professional. Similarly, if you are from fashion designing or software engineering or economics or IR or whatsoever, psychology, you should be able to make connection with your own field of study. वो बनाना आपको आना चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ऐसा पार्ट डेफिनेटली होगा जिसमें आपने बताना है. अब अगर इफ़ वी टॉक अबाउट बिजनेस स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें पता हो कि उनका क्लाइंट एक्सट्रीमली मूडी है या अंडरस्टैंडिंग है, कंपनसेटिंग है या श्रूड है. ठीक है, वो एक्सेप्ट कर सकता है डिलेस को या वो रीज़नेबल है कि नहीं. सम पीपल दे आर नॉट रीज़नेबल, यू कैन नॉट रीज़न विद देम व्हाट्सोएवर. ठीक है, जैसे 1 मिनट लेट हो जाए तो रीज़नेबल शख्स उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ऐसे लोग होते हैं 1 मिनट का लेट भी एक्सेप्ट नहीं करते, 1 दिन का डिले भी एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा होता है. तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एनी क्वेश्चंस? So the next type is called SAD, S-A-D, SAD, seasonal affective disorder. By the name of it, what do you understand? Why would it be called seasonal? किसी सीजन में, किसी टाइम पीरियड में ही आता है. जैसे आपको पोलन एलर्जी का पता है, तो एक उसका सीजन होता है जिसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती हैं इन सर्टेन इंडिविजुअल, वो फिजियोलॉजिकल है. लेकिन ये सीजनल जो डेफिशिएंसी या डिप्रेशन है, दैट हैज़ टू डू विद your mood swings or your psychological self. SAD or seasonal affective disorder is a form of seasonal depression linked to the changing levels of light that typically starts in fall as the days are shortened. It is also known as winter depression or hibernation state. How many of you do not like winters? जिन्हें सर्दियाँ पसंद नहीं हैं. The rest of you like it? Yes, ma'am. Why don't you like it? Swelling हो जाती है, यानी फिजियोलॉजिकली इट इम्पैक्ट्स यू बैडली. कुछ लोगों को ठंड बहुत ज़्यादा लगने लग पड़ती है. जैसे मुझे ऐसा लगता है मैं सर्दियों में ज़्यादा खाती हूँ. आई ईट अ लॉट बिकॉज यू नीड टू स्टे कोजी. ज़्यादा हो जाता है. गर्मी में गर्मी से खाया ही नहीं जाता, बहुत कम हो जाता है, मैं नहीं खा सकती. अगर मुझे पसीना आया हुआ है, आई कैन नॉट ईट, आई हैव टू वेट, फिर मैं खाना खाती हूँ. तो वो भी एक सीजनल डिसऑर्डर तो मैं इसे नहीं कहूँगी, लेकिन माइल्ड लेवल पे इरिटेशन है कि अगर पसीना है तो आई कांट ईट. यस, तो सर्दियों में ऐसा होता है कि हाइबरनेशन मोड क्या होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं. वो सरफेस पे नहीं रहते, वो अपना खाना लेके अपने डेंस में, वो जो जगह बनाई होती है उसमें एक सीज़न के लिए, जब तक स्नो चली नहीं जाती या एक्सट्रीम ठंड चली नहीं जाती, वो बाहर नहीं आते. दैट हैज़ टू डू विद हाइबरनेशन एंड इसको विंटर डिप्रेशन भी कहते हैं. सो दिस इज़ गुड दैट नन ऑफ यू hate or dislike winter, so probably you won't be able to connect with this disorder. Let's talk about it. The nature and severity of SAD vary from person to person, and for some it can have a significant impact on their day-to-day life. Typically, the symptoms come and go with the seasons and always begin at the time of the year, often in the fall. Symptoms include low mood, a loss of interest in
and worthlessness. People with sad lack energy, feel sleepy during the day, sleep for longer than normal at night, and find it hard to get up in the morning. As many as 1 in 3 people are affected. सर्दियों में ये प्रॉब्लम तो आप शायद अग्री करेंगे कि रज़ाई में से सुबह सुबह निकलना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है. कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी लेवल की इरिटेशन होती है, और इसकी वजह से समटाइम्स हम छुट्टी भी कर चुके हैं. मैंने आज नहीं, आज बहुत ठंड है, आज मेरा दिल नहीं करा करते. बाहर अगर बारिश भी हो रही हो और सर्दियाँ भी चल रही हो, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक दफ़ा आपने ज़रूर छुट्टी की होगी, डिले किया होगा, काम छोड़ दिया होगा, या वो एक्टिविटी नहीं की होगी. ठीक है, तो वो डिसऑर्डर नहीं है, वो एक सिचुएशनल डिसीजन है. दैट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर. डिसऑर्डर वो होगा कि आप कंटिन्यूसली फॉर वीक्स अपना नॉर्मल काम ना करें. डिसऑर्डर उसी केस में होगा जब वो एक सिवियरिटी को रीच करेगा. ठीक है, SAD's seasonal nature can make diagnosis difficult. Psychological assessment looks at a person's mood, lifestyle, diet, and seasonal incorporation of different functions in their daily life. ट्रीटमेंट में आपके पास साइकोथेरेपी है एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है. एक चीज़ नोट कर लें कि ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए एक चीज़ या एक किस्म की थेरेपी हमेशा अवेलेबल होती है जो आप समझते भी हैं जेनेरिक लेवल पे. दैट इज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, चेंजिंग योर डाइट, योर स्लीप पैटर्न्स, गेटिंग अ रूटीन. तो आप जो भी डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे एग्जाम में, उसमें आप डेफिनेटली इन 3 चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं कि इफ़ यू सेट अ रूटीन, if you get a better diet plan, and if you exercise or you change your sleep patterns or you sleep for more hours or less hours, it can reduce the level or intensity of the problem that you're going through. तो आप हर किस्म के डिसऑर्डर के लिए रेमेडी में, सोल्यूशन में, ट्रीटमेंट में ये तो डेफिनेटली लिख सकते हैं. उसके अलावा भी आपको लिखना चाहिए. ठीक है, आगे देखें. सीजनल कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? सिंपली पुट, देयर इज अ reason for something to happen. That is cause and effect. If I say, if I study hard today, tomorrow I will be successful, तो हमारे पास cause होगा तभी हमारे पास impact आएगा. Sunlight level affects a part of the brain called hypothalamus by altering the production of 2 chemicals known as melatonin, which controls sleep, and serotonin that changes mood. So you see, अगर आपको इन chemicals की थोड़ी थोड़ी knowledge आप लिख लें, कहीं पे याद रख लें, तो आप अपने आंसर में से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एंड योर स्कोर कुड बी बेटर. आगे देखें, विंटर पैटर्न देखें कैसे होता है. मेलाटोनिन इंक्रीजेस, सेरोटोनिन प्रोडक्शन ड्रॉप्स, डिज़ायर टू स्टे इन द बेड, क्रेविंग कार्बोहाइड्रेट्स, कॉन्स्टेंट डे टाइम फटीग. फटीग इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन, या टायर्डनेस या विड्रॉन होना कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा, जो आप यूजुअली करते हैं लेकिन आपसे हो ना रहा. तो दैट इज़ वन ऑफ द symptoms of seasonal disorder, anxiety disorder. अब देखें एक सर्कल बना हुआ है, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड फॉल. एक ब्लैक एंड वाइट है और एक कलर्ड है. व्हाट डज इट सिग्निफाई? इसका क्या मतलब है? Probably it's just like the yin yang, positive side and the negative side. अब देखिए कलर्ड साइड को पढ़ते हैं. समर पैटर्न पढ़ें. Melatonin drops, so person has more energy. Serotonin production increases, bringing improvement in your mood and outlook. Sleep is good but not excessive, so person has more energy. जैसे गर्मियों में सोना, ज़्यादा सोना problematic है. Do you agree? क्योंकि because गर्मी है, ठीक है, आप कम भी खा रहे हैं या ज़्यादा भी खा रहे हैं तो सोना थोड़ा सा मुश्किल है, कम सोते हैं. सर्दियों में हम ज़्यादा सोते हैं तो वो उस पैटर्न का हिस्सा बन जाता है. देखिए केमिकल कैसे सनलाइट से इफेक्ट होता है. उसने कहा हाइपोथैलेमस में 2 केमिकल्स हैं जिसको वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है और आपके 2 पैटर्न्स निकलते हैं अकॉर्डिंग टू द सनलाइट. जैसे अगर बाहर बारिश का मौसम हो, बिजली हो और बारिश चल रही हो और धूप ना निकले तो एक फीलिंग आती है. कैन यू डिस्क्राइब दैट फीलिंग? व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इज दैट? लेजीनेस, हैप्पीनेस और fun play. Okay, so you like most of you people like the dark, gloomy and rainy season, और जिसमें कड़कती भड़कती बिजली आती है और हवाएं चल रही हैं, और you like that? Yes, ma'am. Okay, यानी फिर आपके जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हैं वो इस तरह से काम करते हैं जो ब्लैक एंड वाइट में है. Yes,
लेकिन उसकी जो तासीर है वो लाइट वाली है. देन देखिए डाइट इम्प्रूव्ड एनर्जी इज देयर. ये बात समझ आई? सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, यू श्योर? उसके बाद आपके पास है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. कैन यू डिफाइन इट? सोशल एंजाइटी, व्हाट इज सोशल और एंजाइटी? इंट्रोवर्ट्स आपको याद होंगे जो क्राउड्स में जाने से घबराते हैं, ये दे डोंट लाइक द क्राउड्स ऑन पार्टीज एंड एवरीथिंग. दे probably have some level of social anxiety in them, which makes them isolated and they don't want to be with people or among people. Individuals with this condition experience an overwhelming fear of being judged or of doing something embarrassing in social situations. The disorder can cause disbelieving or disbelief in self-consciousness, where you actually self-doubt yourself time and again and you put your self-esteem on a lower level. When you put your self-esteem on a lower level, you bring upon a very depressive mood on your own nerves. यही chemicals को आप disbalance कर देते हैं. आप अपने लिए जो राय रखते हैं, the way you value yourself is equally important as the people. अगर आप खुद ही अपनी self-esteem को साइड पे कर देंगे तो लोग भी आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे. And what is it? An individual with social anxiety disorder, also called social phobia, experiences excessive nerves or dread of social situations. They may be anxious only in specific circumstances, such as speaking or performing in public. जैसे कुछ classes में I have witnessed and noticed that the student, when he or she is sitting in the audience, they are very loud. They can crack jokes, they can smile, they can look into your eyes, but when they are asked to come here, मैम मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं बोल सकता. So वो यही है fear of public speaking और fear of saying something that can embarrass. ठीक है, तो वो सारी जो सोच है वो social anxiety में आ जाती है. उसके बाद the person tends to be extremely self-conscious and worries about certain things all the time, right? Certain situations increases social anxiety in them and causes the person to overplan or overthink. जब वो इस तरह से anxious रहते हैं तो वो extra सोचते हैं, जब वो extra सोचते हैं तो extra plan करते हैं, और कोई भी चीज़ extra करने से उसके जो consequences या end results होते हैं वो कहा जाता है कि 50 से 60% नेगेटिव ही आते हैं, वो पॉजिटिव नहीं होते. ट्रीटमेंट देखें, अगेन इसकी ट्रीटमेंट भी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है. ये बुक मैं आपसे शेयर करूँगी, पेज 125 पे आप उसको पढ़ सकते हैं. टू रिकग्नाइज द चेंज इन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एंड बिहेवियर, ग्रुप थेरेपी कुड बी देयर एंड सेल्फ हेल्प कुड बी देयर. जैसे अभी एक ऑडियंस में बच्चे ने पूछा था कि कैन वी एक्चुअली हेल्प आवरसेल्व्स इन सच सिचुएशंस, तो सेल्फ हेल्प इज़ देयर. उसमें क्या होगा, बुक्स पढ़ सकते हैं आप, डिफरेंट टेक्निक्स देख सकते हैं. जिनको ओसीडी होता है उन्हें डीप ब्रीदिंग सिखाई जाती है कि अगर उनको लग रहा है वो घर में चूल्हा ऑन छोड़ आए हैं तो उनके डॉक्टर्स उन्हें ये कहते हैं कि व्हेन यू फील लाइक दिस और आपका माइंड इस सोच से ओवरकम नहीं कर पा रहा, डीप ब्रीथ्स. इफ़ यू टेक लंबे लंबे सांस तो आपकी जो बॉडी में वो जो एक स्ट्रेन आता है या एक बर्डन आता है वो रिलीज हो जाता है, राइट? Symptoms before social interaction, the individual may prepare and rehearse excessively in advance, planning topics of conversation or how to present themselves in a specific way. During the interaction, physical symptoms such as trembling, rapid breathing, racing heart, swearing or blushing can occur. ये जैसे presentations होती हैं, it's a very common tendency that I have also witnessed in among students. आप लोगों में नहीं है, लेकिन अगर 3-4 साल पुरानी बात करें तो जो बच्चे थे वो एंक्शस हो जाते थे. वो जब यहाँ प्रेजेंटेशंस देने आते थे आवाज़ गायब, हार्ट बीट उनकी हो रही है, वो ट्रेम्बल कर रहे हैं, यहाँ पर यूँ करके ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे देखते जाएंगे, परेशान हो जाते थे, काफ़ी परेशान आता था उन्हें, लेकिन दे विल नॉट बी एबल टू से समथिंग. तो वो सारा कुछ जो है वो उसको स्टेज फ्राइट कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में. सिमिलरली सोशल एंजाइटी का भी वो पार्ट है. अगेन इसमें जो एक्शन होगा वो या तो फाइट होगा, वो बंदा उसको फेस करेगा, एम्ब्रेस करेगा और डेफिनेटली हैंडल करेगा, या फ्लाइट करेगा या चला जाएगा. अगर 4 साल पुरानी बात मैं आपको बताऊं तो बच्चे क्या करते थे, जब यहाँ बुलाते थे और अगर उनसे नहीं बोला जाता था वो हमसे पूछे बगैर उतर के बाहर चले जाते थे और फिर वहाँ जाके परेशान हो रहे हैं, पानी पी रहे हैं.
भाई मुझे सांस नहीं आ रही और ऐसा फील कर रहे हैं। आज का बच्चा थोड़ा सा और किस्म का है, वो क्या करता है, मैं नहीं बोल सकता, नो नो, वो बदतमीज सा है, एग्रेसिव है, उसका सेल्फ या डिफेंस मैकेनिज्म ये है कि पढ़ जाओ, बदतमीजी करो, ऐसे बच्चे। और इसका भी ट्रिगरिंग पॉइंट ये है कि उनकी स्कूलिंग या उनका जहाँ से वो कल्चर, जो टॉक्सिक कल्चर प्रिवेल हो रहा है हर जगह, उनका कसूर नहीं है, इंडिविजुअली कसूर नहीं है, सोसाइटल कसूर है, वो चेंजेस आते हैं। एग्जैक्टली अब एक बच्चा यहाँ आकर इस तरह से एग्रेशन शो करेगा, दूसरा कहेगा देखो टीचर ने कुछ नहीं कहा, मैं इससे डबल शो करूँगा, तीसरा कहेगा अब मैं तो यहाँ पर ये तोड़ता हुआ जाऊँगा, हाउ डेयर यू कॉल मी ओवर हियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू अंडरस्टैंड? वो एक एग्जाम्पल होती है कि ख़राब खरबूजा आप अच्छी टोकरी में रखें तो बाकी सारे खरबूजों को भी वो लग जाएगा, तो इट्स जस्ट लाइक दैट, रंग भी पकड़ लेगा, कुछ ऐसा भी होता है। A bad fish pollutes the entire pond, yes. Then देखें after interaction, the person conducts a detailed negative self-critical analysis कि मैंने इस सिचुएशन में ये ब्लंडर किया, आई एम गुड फॉर नथिंग, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और वो खुद ही असेसमेंट करके कोने में बैठ के वो सोप करता रहेगा। सो दिस हैज़ टू डू विद सोशल एंग्जाइटी। देखिए इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है। हम में से सबको कभी ना कभी कहीं ना कहीं माइल्ड लेवल की, मॉडरेट लेवल की ये हुई है। निकलने का तरीका क्या है कि ऑलवेज यस सेल्फ असेस करें, लेकिन उसे पॉजिटिवली करें। आप पहली दफ़ा आए, आपने एक सेंटेंस बोला, आप चले गए, आप डर गए। दूसरी दफ़ा आए, आपने 15 सेंटेंसेस बोले, जस्ट फोकस ऑन दैट यू हैड एन इम्प्रूवमेंट। इंस्टेड ऑफ 1 सेंटेंस you were able to say 15 sentences. That is your win situation. ठीक है? Then you come back again and then you are able to actually execute the entire presentation. Then you tap yourself. आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई और आपको encourage करे. You can encourage yourself as well. क्योंकि इस तरह के social anxiety disorder से निकलने के लिए self help भी बहुत matter करती है। यहाँ तक बात समझ आई? Any questions? Okay. Then we have OCD, that is obsessive compulsive disorder. This is a deliberating anxiety related condition characterized by intrusive and unwelcome obsessive thoughts. Unwelcome obsessive thoughts ये होंगी कि आप overthink कर रहे हैं किसी चीज़ पे, और intrusive ऐसी होंगी कि वो आपको intrude कर रहे हैं। Intrude करने का मतलब है मदाखलत। If you are doing something on your daily basis, आपका एक function है, लेकिन ये thoughts इतनी intense है कि आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इंटरूड कर रही हैं, राइट? These thoughts that are often followed by repetitive compulsions, impulses and urges. You need to remember these 3 words. They are important for this particular disorder. Compulsions, impulses and urges. What are impulses? अचानक से, spontaneous reaction to something or action to something. Urges, जो हमारी एक अर्ज होती है कि you have this urge to walk out, you have this urge to eat a certain food today, you have this urge to bunk the class today, although you don't need to, but एक अर्ज आती है अंदर से कि नहीं आज मैं क्लास में नहीं जाऊँगा, बस मैंने नहीं जाना। वो एक अर्ज है। समटाइम्स वो अनजस्टिफाइड होती है, समटाइम्स वो जस्टिफाइड होती है। What are compulsions? Compulsion compulsory से निकला है, the word compulsory. Compulsory क्या होता है? लाजमी, ऐसी चीज़ जो आपको करनी ही करनी है अगर आप ना भी चाहें। जैसे कंपल्शन है कि आपने आज एग्ज़ाम देना है क्योंकि इसके बाद दोबारा वो नहीं होगा, यस तो वो कंपल्शन भी आपको ओसीडी की तरफ ले जा सकती है। आप इतने आपके दिमाग में वो एग्जामिनेशन फीवर के बारे में सुना है आपने? मेरी एक नीस है, उसको हमेशा हो जाता है, अगर पेपर होने लगे लेट्स से नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है, इस वीक वो बीमार हो जाएगी और जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होंगे वो ठीक नहीं होती। दिस इज़ कॉल्ड एग्जामिनेशन फीवर। कि साइकोलॉजिकली वो परेशानी को इतना तारी करती है कि वो फिजियोलॉजिकली बुखार हो जाता है। कल भी बताया होगा, उनके लिए जो सुनते नहीं है वो दोबारा सुन लें तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये ओसीडी के सिम्टम्स होते हैं। आप में किसी को है ओसीडी माइल्ड लेवल का भी, बिल्कुल थोड़ा सा भी? कुछ लोगों को होता है कि वो सरफेस को हाथ नहीं लगाते, बार बार हाथ धोने पड़ते हैं, दरवाज़ों को हाथ नहीं लगाते। आई हैव सीन इट हैपन, यूं करके ऐसे करते हैं, किसी से कहेंगे यार दरवाज़ा खोल दो, सेंसिटिव होते हैं। दिस इज अ माइल्ड रिएक्शन टू द जर्म ओसीडी के हर जगह जर्म्स होते हैं, हाथ नहीं लगाते। कुछ लोग बाहर खाना नहीं खाते इसी वजह से कि वो साफ एनवायरनमेंट में पका नहीं हुआ, यस
जब घर की जो खवातीन होती हैं, आपने किसी शादी फंक्शन में जाना है, बार बार कहेंगी कुंडी लगा दी है, चूल्हा बंद किया था, वो वाला डोर बंद किया था, लाइटें ऑफ है, बार बार पूछेंगी। मेरी मदर मुझे 2-2 दफ़ा चेक करवाती है सारा कुछ, जाओ ये देख के आओ, ये है, मैं देख के आती हूँ, बिकॉज है बड़ा माइल्ड सा है, कभी कभी होता है लेकिन है। आदि हम वॉक करती हैं, मैं अपनी मदर के साथ वॉक करती हूँ रोज़ाना, तो हम बाहर जा चुके हैं गेट से, आधी रोड हमने मतलब गली से बाहर निकलने वाले, जाके देख के आओ गेट बंद है कि नहीं, मैं वापस जाती हूँ, देख कर वापस आती हूँ, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर अर्जेस, द कंपल्शंस दैट शी हैज़। ठीक है, मैंने आपको बताया वो एक मेडिसिन पे है, उस मेडिसिन की वजह से ये सब कुछ कॉमन है, तो वो सारी चीज़ें डिसऑर्डर में आ जाती है। शी डजंट हैव अ डिसऑर्डर, मोस्ट टाइम्स शी डजंट डू दिस, लेकिन सम टाइम्स इट्स सो एविडेंट कि हमें कंप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, OCD is often marked by thoughts that reflect an excessive sense of responsibility or keeping others safe and an overestimation of the perceived threat as an intrusive thought signifies। अच्छा, एग्जाम में अगर आपको इतनी अच्छी इंग्लिश लिखनी नहीं आती, बेटा सिंपल सेंटेंसेस लिखो, लेकिन गलत मत लिखो, जिब्रिश मत लिखो, छोटे सेंटेंसेस बना लो। यहाँ पर क्या बात हो रही है, इट इज सिंपली सेइंग दैट OCD हैज टू डू विद सच thought processes that make your daily basis task dysfunctionalized। सिंपल सेंटेंस लिखें, बात वही हो रही, राइट? गलत मत लिखें ताकि हमें मैं जब पढ़ूं तो कोई सेंस बन रही हो। आप वो सारे मोटे मोटे वर्ड्स लिख के मुझे दे देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं मुझे खुद समझ आ जाए, ऐसे नहीं, सेंटेंसेस प्रॉपरली बनाएं। OCD इज अ साइक्लिकल, और यहाँ बना हुआ ये देखें, एक साइकिल है, सिक्लिक भी कहते हैं इसको, and often starts with an obsessive thought which that person focuses on, in turn raising anxiety levels. Checking everything in order and following rituals can provide relief, but the distressing thought returns. The obsession thoughts and compulsions are time consuming, and individuals may struggle to function day to day or have a disrupted social or family life. The disorder may be triggered by an event in the family or otherwise। अब देखिए, एंग्जाइटी से स्टार्ट हुआ है, कंपल्शन पे गया है, कंपल्शन के बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट पे गया और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे गया। समटाइम्स इट टेक्स टाइम एंड समटाइम्स इट्स रैपिड, क्योंकि कंपल्शंस और अर्जेस जो होती हैं, और जैसे तीसरा जो वर्ड था इम्पल्सेस, कंपल्शंस एंड अर्जेस, इसमें कुछ स्पॉन्टेनियस होती हैं और कुछ टाइम लेती हैं। फियर ऑफ कॉजिंग हार्म होता है, इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं, फियर ऑफ कंटेमिनेशन होता है, जैसे अभी किसी ने कहा कि बार बार हाथ धोने पड़ते हैं, तो वो फियर ऑफ कंटेमिनेशन है। फियर रिलेटेड टू ऑर्डर और सिमेट्री। आई हैव अ फ्रेंड एंड शी इज़ अ टीचर एज वेल। उनके जो कबर्ड है वो इतना सिमेट्रिकली बैलेंस्ड है कि उनके पास बाहर कपड़े पहनने वाले जो कपड़े हैं उनके हैंगर्स का कलर पिंक है, घर में पहनने वालों का ब्लैक है, शादियों में पहनने वाले का येलो है। यू सी, किस तरह उन्होंने सेट किया होता है। तो ये जो होता है, दिस हैज़ टू डू विद OCD एज वेल। जैसे मेरी जो बहन है, उनको OCD तो नहीं है, लेकिन उन्हें सब कुछ प्रॉपरली जगह पर चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ भी रखूँगी, मैं यहाँ भी रखूँगी, आई रियली डोंट केयर। ठीक है, वो डिफरेंस है हम में, क्लियर डिफरेंस है। कपड़े कहीं पे भी मैं जब जाती हूँ, मैं कहीं पे भी रख लेती हूँ और 2-3 घंटे बाद उठाती हूँ। नॉट माई सिस्टर, वो आएगी, कपड़ों को सही तरह साफ़ करके, सही तरह बंद करके, जहाँ रखना है वहाँ रखेगी, जूते जहाँ उतारने हैं वहाँ रखेंगी, बैग जहाँ रखना है, पानी पियेंगी, साफ़ करके दोबारा वापस रखेंगी। कौन करता है ये सब? तो है ना, डिफरेंस है। अब हम इसको OCD तो नहीं करार दे सकते, ये उनका पैटर्न है। दिस मेक्स हर हेल्प कम ओवर ऑल दोज थॉट प्रोसेसेस विच मे कॉज सम काइंड ऑफ डिप्रेशन, अ लेवल ऑफ डिप्रेशन। मैं जो करती हूँ वो भी एक लेवल ऑफ डिप्रेशन ही है ना, कि कुछ नहीं करना, जो जहाँ पड़ा है, वो भी डिप्रेशन का ही सिम्टम है। बिल्कुल नॉन सिमेट्रिकल होना भी, अनबैलेंस्ड होना भी प्रॉब्लमेटिक है। आप में से कितने लोग सब कुछ अरेंज करके रखते हैं प्रॉपरली? आई डोंट अग्री शुएब, आप तो टाइम पे आ ही नहीं सकते। ये भी OCD होता है ना, मुझे है, मैं टाइम से पहले आती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन क्लास में आना, पंक्चुअलिटी भी OCD का एक सिम्टम हो सकता है, और ना आना, डिलिबरेटली ना आना भी एक सिम्टम है। यस, बाहर देखा है मैंने, आप में से कुछ लोगों को जान के लेट आते हैं, आप देखा है मैंने। आगे देखें, एन एवरेज पर्सन कैन हैव 4000 थॉट्स अ डे।
An average person can have 4,000 thoughts a day and not all of them are useful or rational. Stupid thoughts आती है दिमाग में, बंदा कहता है कि, और फिर बाद में बंदा सोचता भी ये मैंने सोचा भी कैसे, ये मैंने कैसे सोच लिया, मैं तो करती हूँ, मुझे तो आती है, पता नहीं क्या क्या सोचती हूँ, और उसके बाद मैं खुद भी हंसती हूँ कि मैंने क्या सोचा है. आपको होता है ऐसे? सो OCD का माइल्ड लेवल या स्टार्टिंग लेवल उसे कह सकते हैं. ट्रीटमेंट में अगेन वी हैव एंटी एग्जाइटी मेडिकेशन है, एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट यानी इन हाउस. आपने मूवीज़ में शायद देखा हो कि ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ ऐसे लोगों को रख लिया जाता है और उनको डेली बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है, उनके साथ गेम्स खेली जाती हैं, चेस कार्ड्स खेले जाते हैं, फिजिकल थेरेपी करवाई जाती है, उन्हीं तरह के लोगों के साथ उनको रखा जाता है और उनको बेहतर करने की कोशिश की जाती है. और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हर किस्म के डिसऑर्डर के लिए यूज हो सकती है. एनी क्वेश्चंस? ये देखें, ये रिचुअल सबसे कॉमन है OCD में, हाथ धोने वाला, कि हमने नहीं करना. जी बेटा, ये देखें, ये 3 ट्रीटमेंट्स लिखे हुए. एक तो सबसे जो एक्सट्रीम लेवल होगा उसमें मेडिकेशन आ जाएगी, उसकी हम बात नहीं करते. दूसरा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है कि आप अपने बिहेवियर को पहले सोचें कि ये पैटर्न है, मैं इन चीज़ों पर ट्रिगर होता हूँ, उस ट्रिगर को कैसे कम करना है, रिड्यूस कैसे करना है. फिर आप उस पैटर्न को सेट करेंगे फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स और समटाइम्स फॉर ईयर्स. यू विल हैव टू फॉलो दैट डिक्रीज्ड रिचुअल. इवेंचुअली आप अपने माइंड और हार्ट को ट्रेन करने में कामयाब हो जाएंगे. 100% ओवरकम करना समटाइम्स अनअचीवेबल होगा, लेकिन रिड्यूस डेफिनेटली किया जा सकता है. बिल्कुल पड़ता है. अब देखें, आप यहाँ बैठे हैं और अगर आपको खुदा न खास्ता OCD है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं अपनी चाबी अपने बाइक में लगा कर आ गया हूँ, यू कॉन्ट लिसन टू मी, यू कॉन्ट डू वट यू आर सपोज टू डू ओवर हियर. आपके दिमाग में अगर सिर्फ ये चल रहा है मेरी चाबी बाइक में है कि नहीं, क्योंकि आपको अपनी पॉकेट में कहीं मिल नहीं रही और आप सिर्फ वो सोच रहे हैं, तो इसका डेफिनेटली इफेक्ट है. Constant checking, the way you're telling me, examining household appliances, lights, taps, locks, windows. वो गाड़ी वाले भी जो होते हैं बार बार देख रहे होते हैं, वो करने के बाद भी यूँ करके देखते हैं कि बंद हो गया है कि नहीं, तो वो सारा कुछ हो जाता है. Correcting thoughts, trying to neutralize thoughts and prevent disasters, ये मैं करती रहती हूँ, बिकॉज बहुत सारे thoughts आपको बहुत कुछ, यानी कभी कोई बच्चा कुछ कह जाए जो which is very rude and unnice and I want to react in the same way, I want to say stuff, लेकिन I try to neutralize because I have to keep my composure as well. वरना मैं भी उससे इंटेंसिटी से बोल सकती हूँ और ज़्यादा बोल सकती हूँ, लेकिन हमें वो करना होता है. तो वो भी आ जाता है कि मैं अपनी थेरेपी खुद ही कर रही होती हूँ कि calm down, it's okay, it's just a stupid child, ठीक हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद रेश्योरेंस, रिपीटेडली आस्किंग अदर्स टू कंफर्म एवरीथिंग इज ओके और व्हाट, तो ये भी होता है. दिस इज़ वेरी कॉमन. जैसे फीमेल्स में होता है, यार मेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं, मेरा जूता ठीक है, पीछे से देखो दुपट्टा सही किया है कि नहीं, बैग की जिप बंद कर दो, वो सारा कुछ चलता रहता है. बॉयज़ और तरह के, तो उनके होते हैं फ्लेवर्स, लेकिन और तरह के होते हैं. ये बात समझ आई? सो वी हैव टॉक्ड अबाउट आई थिंक 5 नहीं, डिप्रेशन, बाइपोलर, SAD, that is seasonal affective disorder, social anxiety disorder, OCD and PTSD. We have 7 psychological disorders. There are many of them, but I have jotted down the most easiest one so that you can actually attempt your end term examination with full confidence. देखिए, आपका जो question होगा, it will be based on certain psychological disorders, their symptoms, their causes, their possible solutions, remedies, and then their connection with your field of study, whatever field of study you are going through. So इस तरह से क्वेश्चन आएगा. अब अगर इसमें से कोई सवाल है तो बेटा पूछे.